those who don't create more entrepreneurs are truly not entrepreneurs. Super. I think this line deserves a huge round of applause. But जब हम न्यू जनरेशन की बात करें जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, जो एपेटाइट ऑफ रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यू एज बिजनेसेस का सक्सेस रेट अगर हम लोग समझे तो शायद ये 0.1% भी नहीं होगा. ये IIT में एडमिशन लेने से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल है. टीयर 2 टीयर 3 में बहुत अपॉर्चुनिटी है. तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को आप एक क्या राय देना चाहोगे? माइंडसेट बदलो, समंदर देख के आओ, समंदर में जाओ मत, लेकिन अपने कुएं को समंदर बनाओ. कि अंकित है ना, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, व्हाट्स देयर फॉर मी. इस अप्रोच से आप करेंगे तो इट्स अ वेरी नैरो अप्रोच. करेक्ट. What's there for the world, then you become one of the person of that vision. आपका स्ट्रेंथ ही 100 टाइम्स हो जाता है. करेक्ट. चाहे रितेश है, चाहे अमन है, चाहे पीयूष है. A lot of people are very much talking about this whole idea from India to the world, not just India for India. ये माइंडसेट कहाँ से आता है? Hello and welcome all to yet another episode of The Branding Circle. Today we have a very exceptional guest with us. You all must have heard of the gifting industry. So the total size of the Indian gifting industry is 250,000 crores and it is growing every year. And there's one entrepreneur who is taking this opportunity hands-on and innovating in this gifting industry. And we all have seen him in the Shark Tank Season 3. So let's all today welcome Nitin Jain to our podcast. Hi Nitin, how are you doing today? Hi Ankit, just happy to be here, sitting with you, enjoying this moment. Super. So we would like to know a lot about you and your journey in entrepreneurship. But before we start, can you just formally tell us something about yourself, formally, informally, something that is very interesting? A Jaipur boy doing his graduation, post-graduation degree from US and now running this very interesting startup called Indie Gifts, right? Can you share some interesting journey about Indie Gifts? एक लाइन में तो बहुत मुश्किल होगा ये सब कुछ बताना, बट आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू you in such a way that how I want to be remembered. I think हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे designations, बहुत सारे abbreviations, suffix, prefix यूज़ करते हैं और हम अपने आप को काफ़ी खुश करते हैं कि अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, entrepreneur हूँ even. मुझे लगता है एक चीज़ जो मुझे out of all the things which I have done in like last 20 years of my career, one thing which really makes me happy is a title of gift maker. Wow. गिफ्ट मेकर टाइटल के अंदर एक बहुत प्यारी बात है. जो भी गिफ्ट बनाता है ना, तो वो 3 लोगों को एक साथ में खुश करता है. सबसे पहली चीज़, वो खुद गिफ्ट बना रहा है तो उसको खुशी है, इसीलिए वो बना पा रहा है क्योंकि इट्स लाइक एक्सप्रेशन ऑफ लव. देन द सेकंड पर्सन हु इज़ गेटिंग दैट गिफ्ट एंड समबडी हु इज़ रिसीविंग दैट गिफ्ट. किसी ने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा और किसी ने उसको बनाया, तो एक तीर से हम लोग 3 शिकार करते हैं. Amazing. तो आई थिंक वन थिंग विच कीप्स मी मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट इवन is creating things which enable people to express what they feel. इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर जो वो 2 क्षण आपको मिल जाते हैं जिसको देख के आपको एक अनायासी स्माइल आ जाती है किसी प्रोडक्ट को देख के, किसी मोमेंट को देख के, वो मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है. तो आई थिंक बीइंग अ स्टोरी टेलर, अ गिफ्ट मेकर, आई थिंक that's what I really feel because it's not something about myself, it's about how I can enable others to express what they feel. Super. So you say कि सबको आजकल की दुनिया में टैग्स बहुत अच्छे लगते हैं. So you don't like to be called an entrepreneur, but a gift maker. So gift maker is something which I do. It's my passion and my profession at the same time. Or if I talk about entrepreneur, I think entrepreneur word is not properly perceived in this space because like होता ना कि हर जना जिसके पास में कैमरा होता है वो फोटोग्राफर बन जाता है. उसी तरीके से हर जना जो अपने आप को एक CEO का टैग लगाना चाहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर वो है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, नॉट बिकॉज लाइक इट्स वेरी फैंसी टू यूज दिस वर्ड, एंड सेकेंड एट द सेम टाइम वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए और एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर रहा है. Wonderful. Those who don't create more entrepreneurs are truly not entrepreneurs. Super. I think this line deserves a huge round of applause. That those who cannot create more entrepreneurs is not an entrepreneur. Right. And problem solving is at the core
ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सिर्फ टैग लगाने से कुछ नहीं होता. मतलब क्या ये देखिए एक जो आप कन्वेंशनल बिजनेसेस की बात करते हैं जिनको हम लोग, अब एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड व्हाट्स द डिफरेंस इन कन्वेंशनल बिजनेस. धंधा ही तो कर रहे हैं, माइंडसेट का फ़र्क है, राइट. मतलब जो घराने हैं वो भी कोलैप्स हुए हैं, जिनको बनने में काफ़ी साल लगे, क्योंकि जो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जिन्होंने स्टार्ट किया था उसकी बाद वाली जनरेशन में नहीं आ पाया. और आज अगर हम लोग देखें तो मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ यंग किड्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड थिंग्स बिकॉज दे आर एक्चुअली एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड दे वांट टू सॉल्व इट. बट जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट, तो वो भेड़ चाल वाली चीज़ है. जो पहले डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, वो शर्मा जी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर की जगह एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. सो क्या ये आपको लगता है कि आजकल के टाइम में ये कहना सही होगा कि आजकल दिस इज बिकम अ वेरी फैंसी वर्ड बिकॉज ऑफ मे बी सोशल मीडिया, कि आज क्या कर रहे हैं तो मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ. सो दिस इज लाइक अ वेरी इजी वे आउट कुछ नहीं करने के लिए शायद. ठीक है, मतलब लोगों को अगर एक्सप्लोर करना है तो कॉलेज में या अपने एकेडमिक के अंदर कुछ अगर गैप ईयर लेके एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो भी जस्टिफाइड है, गलत नहीं है, क्योंकि आप हैंड्स ऑन करके कुछ समझना चाह रहे हैं रादर देन एक थ्योरेटिकल चीज़ को आप ले रहे हैं. बट बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत 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 मुश्किल है. मतलब अगर हम आज एक फैमिली बिजनेस की बात करें तो उसके अपने ट्रेड्स हैं, सेट पैटर्न्स हैं, आपको बस उसको फिल इन करने पे काम करना है और देन स्टिल आपका ब्रेड एंड बटर सॉर्टेड है. करेक्ट. बट जब हम न्यू जनरेशन की बात करें जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती, जो एपेटाइट ऑफ रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि न्यू एज बिजनेसेस का सक्सेस रेट अगर हम लोग समझे तो शायद ये 0.1% भी नहीं है. नहीं होगा. ये IIT में एडमिशन लेने से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल है. तो उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है और वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे करियर काउंसलिंग होती है उसी तरीके से मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए. और आई थिंक काफ़ी हद तक ये हो भी रही है, जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर्स या जो भी कॉलेजेस आपके अपने सेल्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको मेंटर्स मिल रहे हैं जो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं. और वहाँ पे भी एक लेवल पे थोड़ा जो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है वो ये है कि रादर देन फाइंडिंग प्रोफ्स और अकेडमिशियंस हु आर training people to become entrepreneurs. Let's have more real entrepreneurs who can actually talk about what it takes, because there is a difference in mindset. Absolutely. But those who are not entrepreneurs, how they can create more entrepreneurs? They have never done a business and वो सिखा रहे हैं. So obviously there is going to be a huge gap between what you learn and what you have to execute. Right. है ना? So if अगर आज के जनरेशन के लिए, यंगस्टर्स के लिए, टीन्स के लिए अगर उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, right, but not for a fancy tag but to solve a real life problem जहाँ पे opportunity है. Right. So how do you think they should identify that problem and how do you think they should solve and not just go for a fancy tag? बहुत सिंपल सी चीज़ है. मतलब कहानी सुनाता हूँ मैं आपको उस चीज़ के लिए. कहानी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लाइक इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ स्टोरीज. तो एक सेठ जी थे, वो सेठ जी के 4 बेटे थे. अब वो उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना था तो ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. बिजनेस से कोई राजा तो है नहीं कि सबसे बड़ा बेटा बनेगा. जो बिजनेस बढ़ा सकता है दैट पर्सन शुड बी द वन हु इज़ होल्डिंग द गद्दी. तो वो सेठ जी ने अपने 4 बेटों को बुलाया और सबको 10-10 हज़ार रुपये दे दिए और कहा कि ये 10,000 रुपये है, अब ये 10,000 रुपये आपको मैं दे रहा हूँ, आपको मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ और उसके बाद मैं आपको वापस, मुझे मेरा मूलधन तो वापस करना ही है और इस पैसे से आपको मल्टीप्लाई करके इतना पैसा बनाना है कि आप अपनी पूरी फैमिली को खाना खिला पाएँ. मतलब यू नीड टू गिव अ फीस्ट टू द एंटायर फैमिली ऑन वॉट एवर मनी यू विल बी एबल टू बिल्ड विद दिस 10,000 रुपीज़ एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू रिटर्न विद दैट 10,000 रुपीज़. 4 बेटे थे, चारों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें करी. जो पहला बेटा था, मान लीजिए कि उसने कपास खरीद ली और कपास खरीद के वो बैठने एक शॉप पे जाके बैठ गया कि वहाँ से बेचूंगा. बट वो थोड़ा सा उसको हाई होने की आदत थी तो हाई हो गया तो कोई वो कपास की गठरी लेके चला गया. उसी तरीके से दूसरे ने भी कुछ किया, तीसरे ने भी कुछ किया. इन द एंड जो लास्ट वाला बेटा था उसने सोचा कि यार व्हाट आई कैन डू टू मल्टीप्लाई दिस अमाउंट. तो उसने क्या किया कि ऑलरेडी जो बिजनेसमैन था ना वो उसकी शॉप पे जाके बैठ गया. जानते ही थे सब लोग एक दूसरे को. तो उसने क्या किया कि उसने कुछ बताया नहीं कि आई एम ऑन अ टास्क और आई नीड टू अकम्प्लिश समथिंग. तो वहाँ पे बैठा रहा. तो वहाँ पे जो बिजनेस ट्रेड चल रही थी उसको देखा, सुना, समझने की कोशिश किया उसने. तो उसने देखा कि सेठ जी के पास में एक लेटर आता है कि भाई X and Y जना एक दूसरी सिटी से आ रहा है, उसके पास में कुछ सामान है जो उसको बेचना है बट उसके पास में लिक्विडिटी अभी पूरी ख़त्म हो गई है.
तो उसको इमीडिएट कैश की ज़रूरत है। तो इधर ये जो सेठ जी थे बड़े खुश हुए, इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे तो अच्छा पैसा बन जाएगा मेरा, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, तो मैं आधे पैसे में उससे सामान खरीद ले लूँगा। लूँगा। हाँ। बट ये जो जना बैठा था, इसने सोचा कि यार ये तो गलत हो रहा है। तो वो थोड़ी सी देर पहले पहुंच गया जो जना आने वाला था, और उसने उसके साथ में, मतलब मान लीजिए जो सामान था वो हो सकता है 10 लाख रुपए का सामान था, तो उसने उसको 10,000 रुपीज़ एज अ टोकन एडवांस दे दिया। कहा कि एडवांस दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो माल है मैं आपको शाम तक इसका पूरा पैसा चुका दूंगा। और जो पैसा वो मांग रहा था उसने उसको दे दिया। अब थोड़ी देर बाद में वो सेठ जी भी आ गए। अब वो उनको माल की ज़रूरत भी थी, तो वो माल मांग रहे हैं, तो उसने बोला मैं तो सौदा कर चुका हूँ। अब वो ये सोच रहा है कि भैया किसी को कैसे पता बढ़िया कि ये आने वाला है, उसने सौदा भी कर दिया है। अब वो फिर कहा कि किसने करा, तो उनका कि इन्होंने किया है। तो वो उस लड़के को देखते हैं, वो देखते, फिर उसको समझ में आ गया कि यार यहाँ पे तो अब मैं जो अपनी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैसा मैं बनाने वाला था वो नहीं बनेगा। तो अब जो सेठ जी थे वो कह रहे थे कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, मेरे को आगे मैंने सप्लायर को कमिट कर दिया, तो आप मेरे को सेल कर दो। तो उसने कहा बिल्कुल कर दूंगा, मेरे को उसके ऊपर 10% फ़ायदा करना है, उसके ऊपर आप मेरे को दे दीजिए। तो वो मान लीजिए वो 10 लाख रुपए का सामान था, वो 10 लाख रुपए भी सेठ जी को देने पड़े, ऊपर से 1 लाख रुपए का उसको 10% फ़ायदा भी हो गया। तो 10,000 रुपये के साथ में वो जो 10,000 रुपये अपने पिताजी से लिए थे, चौथे बेटे ने वो 10,000 रुपये तो वापस किया, और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी उसने साथ में किया। तो मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। राजा का बेटा राजा बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग अपने सिस्टम्स को देखें तो हर जने का एक ट्रेट होता है। उस ट्रेट के हिसाब से अगर आप अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, देन इट मेक्स सेंस। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम पे हम लोग जो एक वर्ण व्यवस्था है उसको उतना समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत सोच समझ के बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है कि भाई आप अगर देखेंगे 4 तरीके के लोग होते हैं। क्षत्रिय होते हैं जो लाइक हु आर बल्कि, हु आर पावरफुल, हु आर वॉरियर्स, राइट। सेकंड ब्राह्मण्स होते हैं, हु आर एडुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, सिस्टम क्रिएटर्स। थर्ड हो गए आपके जिनको अपन वैश्य बोलते हैं, वणिक बोलते हैं, जो बिजनेस करते हैं। चौथा आपके जिनको हम शूद्र बोलते हैं, जो सर्विस करते हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो बनिया है या जिनको हम लोग जैन माहेश्वरी बोलते हैं वही बिजनेस करते हैं। एनीबडी हु इज डूइंग बिजनेस इज बनिया। करेक्ट। उसी तरीके से अगर आप अपने आप को, अपने ट्रेट को आइडेंटिफाई करें पहले कि भाई मेरी ट्रेट क्या है, कि भैया मैं I'm a person who can go into defense, I'm a person who is good in terms of policy making or education, I'm a person who is really good in terms of business, I have that business acumen, and then I'm really good in terms of service. तो वो ट्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना विल मेक अ लॉट मोर सेंस, बिकॉज एपेटाइट ऑफ रिस्क चाहिए, माइंडसेट चाहिए, और उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मतलब वो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है, वो स्लो माइंडसेट पे आप काम कर रहे हैं, तो बिजनेस ना करें, सर्विस करें। दैट विल मेक मोर सेंस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जो आपका ओरिजिनली क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी डिटेल में बोल दिया, लेकिन ओरिजिनली जो आपका क्वेश्चन है कि what are the things which people or students or aspiring entrepreneurs should do before they actually they go into entrepreneurship, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको उसको वेट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। इतनी जल्दी क्यों है ज़िंदगी के अंदर? करेक्ट। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस कैसे होता है उसको समझो तो एक बार जाके। मतलब अगर होमवर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो सब कुछ खुद करके सीखना पड़ेगा। जिसको बिजनेस बनाना है ना, उसको एक्चुअली किसी बिजनेसमैन के पास जाके काम करना चाहिए, तो बिजनेस का ट्रेड समझ में आएगा। एंड आई थिंक आजकल के ज़माने में अगर हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, राइट। सो यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ मेंटर्स जो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि इज एंटरप्रेन्योरशिप फॉर मी, इज आई एम एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या मैं जॉब के लिए सही हूँ, या मैं उसमें फुलफिल रह पाऊँगा। तो यहाँ पे भी मेरा एक थॉट है अंकित, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, बट मैं ऐसे ही बात करता हूँ, तो आई एम वेरी ओपनली सेइंग दैट कि दोज पीपल हु कॉल देमसेल्व्स मेंटर एंड प्लेस अ टैग ऑफ मेंटर्स, यू रियली नीड टू वेट देम एज वेल। ओके, बट देन हाउ कैन अ टीन और अ यंगस्टर, आई कैन टेल यू दैट। ओके। तो ऐसा नहीं होता ना, हर चीज़ को पहचानने का तरीका होता है, तो पहचानने का तरीका मैं बता सकता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई। सो देयर आर 3 लेवल ऑफ पीपल, one whom you can call mentor, then other are coaches, and then the third person can be your investors or somebody who can help you in different way, different aspect. तो mentor कौन होता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, mentor does not come with price tags. Absolutely. Anybody who want to charge you for mentoring are not mentors, because
a mentor is not a person who is concerned about what he will get from you. It is all about what he can give you to solve your problem. A mentor is the one who does not charge. Second, who asks you right questions. Mentor आपको कोई solution नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा. वो आपसे ही सारे जवाब निकलवाएगा और आपसे right questions करेंगे. हाँ, बिल्कुल. Third, the mentor categorically should not or will not talk about your occupation or your business. That person will purely talk about your holistic well-being. That person will put you the right situation or questions where you are thinking that it is not just my business which is whole of me. वो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट, व्हाट टेक्स यू हाई, व्हाट टेक्स यू लो, वो होलिस्टिकली आपके बारे में समझेंगे और देन आपको एक राइट डायरेक्शन के अंदर आप ही को चलने के लिए गाइड करेंगे. क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को मेंटर वो चाहिए जो मेरे बिजनेस को कैसे बनाना वो बता दे, तो वो मेंटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड का प्रॉब्लम है. सो देन यू कैन कॉल दैट पर्सन अ कोच probably. Exactly. That's come the second space. Correct. जिसको मैं बोलता हूँ कोच. कोच वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं. कोच वो है जिन्होंने वो चीज़ ऑलरेडी करी है. कोच आर स्पेसिफिकली स्किल्ड पीपल इन सर्टेन एरियाज. अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग वही सिखाएगा ना जिसमें स्विमिंग की है. करेक्ट. और कोच को आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि काम है उसका ये. करेक्ट. तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोच आर बेसिकली ऑफ स्पेसिफिक स्किल सेट कि भाई मेरे को फाइनेंस में कोई जना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट में कोई जना चाहिए, मुझे इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए कोई जना चाहिए. तो आपको उसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा. स्पेसिफिक डोमेन एक्सपर्टीज होता है. आपको हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा कि उसने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं किया. ट्रू. Mentor need not to have expertise in all the area. Mentors are just need to give you that non-judgmental space where you can be vulnerable. Correct. And when you are vulnerable, then only you will be able to open up. Correct. जब तक आप वो अंदर तक जाके चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपको इंटेंट नहीं समझ में आएगा किसी का. एंड ये कभी भी एक सिटिंग में नहीं हो सकता है. सो पीपल इट टेक्स टाइम. टुडे माइट थिंक कि भाई 1 घंटा में किसी के साथ मिल के आया, मेंटरशिप ले ली, हाँ मुझे डायरेक्शन मिल गया, बट वो सही नहीं है. मतलब वो मेंटर एक ना दूर खड़ा हुआ आदमी है और आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो. करेक्ट. वो दूर ही खड़ा है, वो पहाड़ पे आपके साथ में चढ़ने वाला ही नहीं है. हाँ. वो आपको दिशा दिखाएगा. वो दिशा दिखाएगा आपको. वो आपको बोलेगा कि ठीक है अभी सही डायरेक्शन में चल रहे हो, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा राइट हो जाओ. आइडली तो वो भी आप ही को देखना है, लेकिन वो मेंटर एटलीस्ट आपको गाइड करता रहेगा कि रुको मत, चलते रहो. वेरी नाइस. एंड थर्ड लेवल पे है कि अगर आप इफ यू कैन आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ मेंटर्स, you can identify the right set of coaches will definitely help you to expedite, help you to improve. And then definitely there are investors. So investors are not mentors or coaches. Do not expect them to be your mentor or coach. Correct. They are the people who know how to multiply money. That's why they are investing in you. You can learn to get a better ROI from investors. Simple. Take investors so that you can invest better. Okay, take investors so that you can invest better. Absolutely. In your business? Wherever it is better ROI. Okay. Investors are the people who know better ROIs. आपका माइंड मनी जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं, जहाँ आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, ये आपको इन्वेस्टर से सीखना चाहिए. करेक्ट. सुपर. सो जो तीनों जन है, तीनों एक डिफरेंट पर्पस के साथ आते हैं आपके लाइफ में. आपको पर्पस आइडेंटिफाई सबसे पहले करना होगा. हाँ, मुझे इस आदमी से क्या चाहिए ये जब तक मुझे नहीं पता है तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं सामने वाले को. करेक्ट. तो वो आपको डायरेक्शन दिखाई नहीं पाएगा, वो आपको गाइड कर ही नहीं पाएगा. आप ही को नहीं पता है. और मे बी स्टार्ट विथ मेंटर सो दैट एटलीस्ट मेंटर कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट यू रियली वांट बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. करेक्ट. सो नेक्स्ट मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, नाउ दैट वी हैव डाइग्रेस्टेड टू मच इनटू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट ये जानना था कि व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ इंडी गिफ्ट्स? तो इंडी गिफ्ट्स अभी आई थिंक लाइक इट बिकम लाइक द शो स्टॉपर इन दैट होल परेड. करेक्ट. बट आई थिंक इंडी गिफ्ट्स इज नॉट द फर्स्ट थिंग विथ व्हाट आई हैव स्टार्टेड. तो अगर मैं क्विक स्नैपशॉट आपको दूं तो विजयनगर करके एक जगह है जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आती है राजस्थान के अंदर. वहाँ पे आई एम बॉर्न. तो मेरी 12th तक एजुकेशन वहीं हुई है. आयरॉनिकली ये था कि 10th तक मैं राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा था. राइट. और मान लीजिए कस्बे में आपकी पूरी पढ़ाई हुई तो माइंडसेट भी बिल्कुल वैसा ही था. पूरा सब जने बिजनेस में. ओनली माई फादर चोज टू बी इन सर्विस. ही वॉज इन अ बैंक. तो एटलीस्ट ही हैड अ बेटर एक्सपोजर बिकॉज फॉर हिज जॉब ही नीडेड लाइक टू ट्रैवल अलॉट. काफ़ी ट्रांसफर हुए तो काफ़ी देखने को मिला उनको. राइट.
तो उनको ये तो समझ में आ गया था कि यार दिस इज़ नॉट द वे किड्स शुड वर्क. मतलब ना वो समझ पा रहे थे कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जा पाऊँगा, ना उनको लग रहा था मैं जॉब कर पाऊँगा. तो उन्होंने मुझे हमेशा चॉइस दी कि ट्रैवल करो जाके. तो दैट होल आइडिया भ्रमण से भ्रम मिटे वॉज मेरे अंदर डाला उन्होंने ही है कि जब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो निकलो, क्योंकि किसी को तो पता है कि क्या करना है. आपको नहीं पता ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे. मतलब इट्स नॉट अबाउट हाउ, इट्स अबाउट हु. तो आपको हेल्प लगेगी, आपको हेल्प लगेगी, करो. बिल्कुल. तो अगर हाउ नहीं समझ में आ रहा तो हु करो. करो. तो हु करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो ढूंढने के लिए मिलेगा कि कौन कर सकता है. तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया ट्रैवल करो. तो उसी चीज़ में एक बार हुआ कि आई मेट विद अ फ्रेंड जो 10th तक मेरे साथ हिंदी मीडियम में पढ़ा था, लेकिन ही टुक एडमिशन इनटू अ CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो उससे बात करा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है तू. तो उसने बोला कि नहीं, आई वांट टू डू बेटर थिंग्स, मे बी आई वांट टू डू इंजीनियरिंग और IIT और समथिंग लाइक दैट. आई नीड टू गेट बेटर एजुकेशन. आई कैन नॉट गेट इट फ्रॉम द करंट स्कूल, सो दैट आई वांट टू गो इनटू दैट. तो मैंने कहा बोल तो सही रहा है. मैंने ही पापा को जाके बोला पापा मुझे भी स्कूल चेंज करनी है. करेक्ट. ही डिड हिज रीजनिंग and we were middle class people and the school and the fees were high back then. This was which year? I'm talking about 2004. 2004, okay. 20 साल पुरानी बात है. तो then I took admission into that school. तो 10th तक मैं almost like I was the topper. मतलब बोर्ड एग्जाम्स में I was topper. 95-98% मार्क्स आते थे हमेशा मेरे पास में. और 12th तक 10th तक तो काफ़ी स्कूल टॉपर रहता था. तो फिर 12th के अंदर राजस्थान बोर्ड से CBSE बोर्ड में जाना, इंग्लिश मीडियम लेना, तो द वेरी फर्स्ट फेलियर आई सॉ इन दैट. मतलब मेरे को 11th में सप्लीमेंट्री आई थी. उससे पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि फेल होना क्या होता है लाइफ के अंदर. बट आई वर्क वेरी हार्ड. 12th के अंदर आई वॉज एबल टू स्कोर गुड. बट दैट रियली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू, बिकॉज द टीचर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट वॉज देयर. इट गिव मी इनफ एक्सपोजर. तो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ. और ये मैंने हर बार किया लाइफ के अंदर, जब भी मैं अपने करियर में आगे कुछ करना चाहता था. फिर मैंने बिल्ड एंड स्टफ टेक्नोलॉजी के अंदर अपना बैचलर्स इन एनिमेशन किया, मास्टर्स इन डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन किया, जो मैंने जयपुर से किया था. फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से अपना एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेशलाइजेशन किया. ये कौन से साल में? I did my UG from 2006 to 2009. Okay. 2009 to 2011 I did my postgrad, and 2013-14 I did my specialization. In entrepreneurship? Yes. Okay. But इस पूरे रास्ते के अंदर मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यार if I really need to do something about it, I really need to educate myself in a better way. And education केवल पढ़ के नहीं आएगी, practical hands-on काम करके आएगी. True. और समथिंग हैपेंड विथ मी. मतलब माई फादर पास्ड अवे इन 2008. तो मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही था. तो वो लेसन्स समझ में आ गए थे. तो मैंने 2008 से एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई वर फर्म कि दैट आई विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम माई फैमिली. नॉट लाइक दैट वी वर नॉट, उतना ऐसा नहीं था कि वो हैंड टू माउथ था. मतलब माई फादर मेड ऑल द अरेंजमेंट कि हमें कभी किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़े. बट मेरे को वो भी था कि अंदर से वो आपका आ जाता है कि भाई फैमिली के अंदर यू आर द ओनली मैन. तो लड़का एकदम से आदमी बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. हाँ. माई टिल डेट माई मॉम डिड नॉट टुक अ सिंगल पेनी फ्रॉम मी. तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे इसलिए कमाने थे क्योंकि घर चलाना था. ऐसा तो फॉर्चुनेटली मैं उस सिचुएशन में नहीं था. नहीं आई. बट मैंने भी उसके बाद में मॉम से कुछ नहीं किया. सुपर. तो काम इसलिए करना था. एंड दिस वाज सिंस 2008 यू सेड? हाँ, सिंस 2008 आई एम ऑन माई ओन. वंडरफुल. तो इस तरीके से काम की शुरुआत हुई. अब काम क्या करना है? काम ये करना है जिसमें मज़ा आता हो, जिसके अंदर वो भेड़ चाल वाली फीलिंग नहीं आती हो. तो आई रियलाइज लाइक आई वॉज गुड इन कम्युनिकेशन. और मैंने अपना मतलब पिछले 15 सालों के अंदर मैं देखूँ तो मैं कम्युनिकेशन के अराउंड ही काम करता रहा हूँ और मीडियम बदलते रहे. सबसे पहले आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज इन एनिमेशन. तो मैंने सबसे पहले एनिमेशन को लेके एक इनिशिएटिव लिया था, इंडी एनिमेशन नाम से. तो वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग लाइक द विकीपीडिया और IMDb का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम चाहते थे कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में कुछ तो अवेलेबल हो, जो आज भी नहीं है वैसे. तो स्टैंडर्डाइज करें, रेटिंग करें, इनिशिएटिव्स को पोजीशन करें, रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट को एनिमेशन के मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आएँ. एनिमेटर्स कौन है उनके बारे में बताएं, फिल्म मेकर्स के बारे में बताएं. तो वी वांटेड टू क्रिएट द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ दिस कम्युनिकेशन कम एंटरटेनमेंट कम एनिमेशन इंडस्ट्री. एंड फॉर दैट वी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट.
बट बिजनेस की समझ नहीं थी। तो 2 साल लगाए, काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन किया। कौन से साल में था ये? 2008 से। 2008 से ये स्टार्ट 2007 से मतलब कर लिया था व्हेन यू आर मैंने। डूइंग योर यूजी? हाँ। कॉलेज के पहले साल से स्टार्टेड, कुछ ना कुछ तो मैं तब से ही कर रहा था। क्योंकि ऐसे जब पूछा गया था कॉलेज के अंदर कि भैया जब सब बैठे हैं कि भाई आगे क्या करोगे, तो आउट ऑफ ऑल द पीपल किसी को फिल्म मेकर बनना था, किसी को डायरेक्टर बनना था, किसी को कुछ और करना था। मैं क्लियर था कि मैं किसी और के लिए काम नहीं करूँगा। और कुछ नहीं पता कि क्या करूँगा, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कुछ नहीं पता है, बट काम अपना ही करूँगा जो भी करूँगा। छोटा होगा बड़ा होगा पता नहीं, लेकिन काम अपना करूँगा मैं। तो वो आज भी वही चल रहा है। आज भी क्या कर रहा हूँ, आई थिंक ओवर द पीरियड में इवॉल्व हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो 10 साल पहले कर रहा था वो भी आज कर रहा हूँ, 10 साल बाद भी वही करूँगा। तो ये शुरुआती दौर था। एनिमेशन को लेके काम किया, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उस तरीके का काम किया। तो 3 साल तक मैंने काफ़ी फ्रीलांसिंग का काम किया और आई वॉज एबल टू अर्न। मतलब सबसे पहला लोगो जब मैंने बनाया था तो उसके 500 रुपये मैंने लिए थे और हिम्मत नहीं हो रही थी वो 500 रुपये मांगने की। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऐसे कैसे मांगे पैसे? आई कैन कंप्लीटली रिलेट बिकॉज मेरा भी सिमिलर जर्नी रहा है इन द सिमिलर इंडस्ट्री। सो इवन आई स्टार्टेड ड्यूरिंग द कॉलेज डेज। फर्स्ट ईयर में डिज़ाइनिंग सीखा एंड फ्रीलांस डिज़ाइन करते थे, कहीं पे जॉब करते थे साथ में। मतलब वो बहुत अजब, मतलब मेरे को लगता है कि जो फ्रीलांसिंग करने लग जाता है ना उसको पैसे की वैल्यू बहुत पता पड़ जाती है और काम को लेके सिंसियरिटी आ जाती है। नहीं तो कॉलेज के 4 साल 5 साल आपके मस्ती मजाक में कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं। आपको पैसे कमाने नहीं होते, बिल्कुल तो मिल रहे हैं। तो पैसे तो थे ही नहीं अपने पास में, अपनों को अपना खर्चा भी निकालना है तो खुद को निकालना है। तो दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ आ जाती थी कि भाई आई डोंट हैव मनी टू वेस्ट। राइट। तो कभी मेरे को अंदर से वो फोमो वाली फीलिंग नहीं आई कि यार मेरे दोस्त अपनी लाइफस्टाइल पे इतना खर्च कर रहे हैं, कभी अपने बाप का पैसा खर्च कर रहा है। तो मतलब व्हेन यू विल अर्न देन यू विल नो। करेक्ट। तो वो एक अच्छा दौर रहा कि मनी को लेके, मनी के पावर की समझ आ गई अपन को ये समझ में आ गया कि अपना खुद का अगर आपको बनाना है तो खड़ा तो खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, किसी की उंगली से कितना ही चल लोगे आप। करेक्ट। ऐसा किया, मतलब फ्रैंकली कि जब लास्ट जब लोग, अब सर्विसेज में मैं अब इतना काम नहीं करता हूँ, बट आई चार्ज 100 times ऑफ व्हाट आई चार्ज फर्स्ट ऑफ क्रिएटिंग अ लोगो व्हेन आई वाज हार्डकोर इनटू सर्विसेज। हाँ, अब तो फिर हमने अपना प्रोडक्ट ब्रांड स्टार्ट कर लिया तो सर्विस पे फिर उतना नहीं काम कर पाया। प्रोडक्ट ब्रांड व्हिच इज इंडी गिफ्ट्स, दैट इज इंडी गिफ्ट्स। एंड ये कब शुरुआत हुई इंडी गिफ्ट्स तो की? फॉर्मली 2012 के अंदर मैंने इंडिबनी डिज़ाइन स्टूडियो की शुरुआत की थी। तो जयपुर के लिए काफ़ी रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं फर्म था कि मुझे जयपुर रह के ही काम करना है। मतलब मैं बॉम्बे भी आया था लेकिन जॉब के लिए नहीं आया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि समंदर कैसा होता है, एक बार देखे तो कुएं का मेंढक बन के क्या होने वाला है। करेक्ट। तो I frequently traveled and I met a lot of people, not to apply but just to understand the industry. 2012 में आई थिंक आई स्टार्टेड द फर्स्ट डिज़ाइन स्टूडियो इन राजस्थान, बिकॉज उससे पहले डिज़ाइन वर्ड पे कोई बात ही नहीं करता था। हमें उस टाइम में रियलाइज हुआ कि ना दौर बदल रहा है। ई कॉमर्स एक बहुत नया वर्ड था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2013-14 जब आपने इंडी गिफ्ट्स की शुरुआत की, इंडिबनी की शुरुआत की थी। तो इंडिबनी स्टार्टेड एज अ डिजाइन हाउस। इंडिबनी वाज मोर लाइक अ विजन फॉर मी एंड आई वांटेड टू एनकलकेट दैट डिजाइन हाउस फॉर प्रोडक्ट्स। So it was a multidisciplinary design house where we were enabling brands and businesses to communicate, and the communication was done to print, electronic, digital and merchandising as well. We did films, we even did interior of a brand. हमने किसी के लिए merchandise बना के दी। देखिए ब्रांड है, उसको अपने एक टीजी को एक मैसेज कन्वे करना है। बीच में 2 चीज़ें हैं, एक मैसेज है और एक मीडियम है। Correct. तो हमारा कोर फोर्टे था कि हम मैसेज और मीडियम के ऊपर काम करते हैं। मैसेज वी वर्क विद द ब्रांड एंड मीडियम हम सेलेक्ट करेंगे कि राइट मीडियम क्या है जिससे ये मैसेज आपके टीजी को कन्वे हो सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन को थ्योरेटिकली भी पढ़ा था तो समझ थी कि काम कैसे होता है। और हमने एडुकेट भी बहुत लोगों को किया। लोगो नहीं समझ में आता था लोगो होता क्या है, तो लोगो समझाया हमने लोगों को कि लोगो कितने तरीके के होते हैं, लोगों का इंप्रेशन क्या होता है, लोगों से फ़र्क क्या पड़ता है, क्या याद रहता है, क्या याद नहीं रहता है, और लोगों से ब्रांड कैसे बनाई जाती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। तो अब समझ गए होंगे कि हमारे को कम्युनिकेशन बहुत समझ में आता था। तो हमने सोचा कि यार सर्विस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इट्स अ हैंड टू माउथ, एंड हमारे पास में कुछ क्वेरीज आ रही थी जिनके प्रोडक्ट्स को हम लोग ई कॉमर्स में पोजीशन करने का काम कर रहे थे। तो हमें ई कॉमर्स का पावर समझ में आ गया अचानक से। हमने सोचा कि डिज़ाइन के अंदर एक डिज़ाइन को एक बार बनाऊंगा, एक बार बेचूंगा। प्रोडक्ट में एक डिज़ाइन को एक बार बनाऊंगा और 1000 बार बेचूंगा। तो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड क्रिएटिंग सम प्रोडक्ट एंड मर्च। हमने सबसे पहले हमने अपने कॉलेज को ही पिच कर दिया। तो कॉलेज का जो एनुअल इवेंट था उसका मर्चेंडाइज बना के हमने वहीं दुकान लगा ली। ओह वंडरफुल। देन वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल। कैफ़ेज़ में हमने कुछ प्रोडक्ट्स डाले। बट मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज़ जो थी, एक तो क्या, जिस तरीके के परिवेश से मैं आता हूँ तो वहाँ पे रिलेशंस और इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है।
तो और मेरे साथ में ऐसा रहा है कि आई बिकम मतलब मेरा जो प्यार है वो एक्सप्रेस करने का तरीका ही गिफ्ट होता है. मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु एवर से आई लव यू टू एनीबडी. सबका अपना तरीका है तरीका जताने होता का. है और वो हमने शार्क टैंक में भी सुना हाँ, है. वो दिव्या को इतने गिफ्ट्स इसीलिए मिले. 100+ गिफ्ट्स दिए आई थिंक 6 साल में. हाँ, तो आप किसी के लिए फील करते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी को एक मैसेज में लिख के भेजेंगे, क्या कर रही हो, कैसी हो, कुछ खाया नहीं खाया, ये भी आपका प्यार जताने का तरीका है. कोई लेटर लिख के देगा, कोई किसी को वेकेशन पे लेके जाएगा. तो मेरे हिसाब से मेरा प्यार जताने का तरीका यही है कि आई रियली वांट टू क्रिएट थिंग्स फॉर पीपल. और ये केवल दिव्या के लिए नहीं है. Anybody and everybody who become part of my life, even for a small instance, be it my school teachers, be it my school friends or college friends, college teacher, I can put in writing that all the people received something from me. तो ये गिफ्ट्स का जो डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है, ये आपने कब से स्टार्ट किया था? विच ईयर वाज दिस? I think it is from childhood, not categorically saying कि But ये नहीं, हुआ है. business को Indie अगर Gifts as a करें brand तो हम हाँ. लोगों ने, हाँ, तो 2017 तक हमने काफ़ी सर्विसेज पे काम किया. वी वर्क विथ 350-400+ पीपल. इंडिविजुअल्स भी थे. मैंने आपको बताया जैसे सेलिब्रिटीज़ और पब्लिक फिगर्स के लिए भी हमें उनके पोर्ट्रेट्स और वो सब बना के दिए थे. और ई कॉमर्स का दौर जब स्टार्ट हो गया था तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार फ्यूचर इस चीज़ का है. दिस इज विच ईयर? 14-15? ये ट्रांजिशन जर्नी थी. तो फिगरेटिवली हमने 2017-18 के अंदर इंडी गिफ्ट्स को एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट लेबल की तरह लॉन्च किया. और इंडी गिफ्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2017-18 के आसपास. We were able to take leverage of the riding wave of the e-commerce. मतलब हम लोगों ने we still have that record of processing 10,000+ units in one single day. Wow. That we did. It was the COVID time. COVID के टाइम के अंदर हम लोगों ने किया because we had understanding of the product. We were able to do right things at the right time. तो हमने वो वेव भी देखी. फिर कोविड ने सब कुछ मचा दिया बिजनेसेस के लिए. तो वो जो हमने हाई राइज देखा उसके बाद में हमने डाउनफॉल भी देखा. एक तो है कि आप इस स्पेस पे चल रहे हैं, एक है कि आपको अचानक से ऊपर ले जाया गया और फिर आप नीचे आ गए. बट वी हैव बिकम कॉन्शियस इवन इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर डूइंग. वी रियलाइज़ कि अगर हमारे एक्चुअल में गिफ्टिंग इंडस्ट्री के अंदर इस कंट्री से दुनिया के लिए कुछ बनाना है, हमें अपने सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. किराए के घर में रह के बिल्डिंग नहीं बन सकेगी. तो वी टुक सम हार्ड डिसीजंस लाइक हम लोगों का ओवरऑल जो SKU कलेक्शन था इट रीच्ड अराउंड 25,000 SKUs. यस. तो अब मैंने उसको एटलीस्ट 80% हमने अपने SKUs को डीएक्टिवेट कर दिया. बिकॉज वी हैव रियलाइज कि इस तरीके से काम नहीं होगा. एटलीस्ट स्केल तो नहीं होगा. स्केल हो सकता था अगर वो जगह अपनी होती तो. क्योंकि जो भी चीज़ें चलने लगेगी मार्केट प्लेस का ही काम है. मतलब इट्स जस्ट लाइक देयर बिजनेस मॉडल इज दे वांट सेलर्स टू कम एंड फाइट. करेक्ट. उनका बिजनेस ये है. कस्टमर को तो उसका फ़ायदा मिलना ही है. True. तो ये 2 बिलियन की लड़ाई के अंदर आज तो हमने देखा है काफ़ी इंस्टेंसेस है जहाँ पे मार्केट प्लेस खुद वो सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं. मैं तो बता रहा हूँ ना, इट इज जस्ट लाइक 2 बिलियन की लड़ाई में बंदर को रोटी मिलनी है. तो हमने ये चीज़ तो रियलाइज़ कर ली कि अगर हमारे को वास्तव में कोई सब्सटैंशियल बनाना है तो हमारे को ऊपर जाने के साथ में नीचे जाना पड़ेगा. तो वी आर क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल वेयर द पीपल हु आर वर्किंग विथ अस एज पार्टनर्स एंड सेलर्स they also become stakeholders in our company. Rather than just treating things like stock options for employees, we are creating this unique proposition of partner stock options. Wonderful. तो partner stock option का मतलब है कि अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो बिजनेस में आपके लिए कुछ ना कुछ अपसाइड है. मतलब आज अगर अपन देखें, मैंने इनफैक्ट 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है जिनके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ. एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के लिए. करेक्ट. स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि भाई अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप का रियल टेस्ट चाहिए तो दे नीड टू कम एंड वर्क विद समबडी. तो उसके लिए हम लोग अपना एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं. वी विल बी लॉन्चिंग इट इन जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर. द सिंपल आइडिया इज कम बिकम co-founder with us. Super. But you will not be a co-founder on day one. After a year you will be. After at least you prove yourself. You prove, and then there are business ideas on which you need to work. You need to take that leadership and ownership, make it work. And then you will be entitled as a co-founder of that particular initiative. Correct. And at the same time, this is from the making side, right? Correct. From the seller or the enabler side, come become a partner with us. If you can sell, if you have your space from which you can actually connect with the customers, consumers, because आप जाके देखिए गिफ्ट शॉप्स की कमी कहाँ पे है इंडिया में. आपको हर मोहल्ले में एक गिफ्ट शॉप मिल रही है. मिल जाएगा. करेक्ट. उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है?
They want to get some new product which they can't because everything is sourced from China. Correct. Same products are available on all the shops. All the shops, all the e-commerce platforms, सब जगह तो available कुछ होता है. नया तो आ ही नहीं रहा है वहाँ पे. दूसरा है कि उनको थ्रेट है क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स से, क्योंकि लोगों का एक शिफ्ट मिल रहा है. Yeah. ई कॉमर्स से जितना नहीं था उतना क्विक कॉमर्स से ज़्यादा है. तो हाउ इट विल वर्क? दे नीड टू पार्टनर विद समबडी हु इज़ डिजिटल फर्स्ट. Correct. He can protect their right and at the same time helping them to elevate. Wonderful. And not just in terms of their monthly income, but also from the upside level, Okay. And when you say upside level, मतलब? giving that partner stock options. Okay. Okay. So the simple idea is we want to create 10,000 plus retailers, resellers who are part of IndieGifts, Super. and they will be also stakeholders in our business. So they are also protected from these highly funded companies or Chinese products. Not just protected in terms of product, but protected in terms of competition as well. Competition as well. Correct. Competition from these. देखिए जो मार्केट प्लेस कर रहे हैं वो तो यही कर रहे हैं कि आप आइए, आप पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई आपका एक प्रोडक्ट चल जाएगा तो उसको हम लॉन्च कर देंगे. Correct. हम वो सेम चीज़ नहीं करना चाहते ना. हम इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इस कंट्री से दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं. तो करेंगे कैसे? अगर हम हमारे सेलर्स का, हमारे पार्टनर्स के राइट को ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे आगे? True. 100% है. So जैसे आपने ये कहा कि इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. राइट. एंड we've all also seen कि इंडिया के टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी बहुत अनटैप पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है. मतलब इट्स लाइक 70% ऑफ द थिंग. पिरामिड का 70% वो है जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. करेक्ट. सो इसमें आप अभी नेक्स्ट ग्रोथ क्या देख रहे हो? मतलब आप आते हो जयपुर से, बाकी उसके भी आसपास काफ़ी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे आपने अभी काफ़ी रीसेंट डेवलपमेंट भी देखा होगा. सो उसका अभी आप क्या ग्रोथ देख रहे हो नेक्स्ट इन द फ्यूचर, नेक्स्ट 5 years, 10 years डाउन द लाइन? एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे कैसे ग्रो डिजिटल होगा? फर्स्ट तो आपको बनना ही पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. करेक्ट. बट डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल इज द फ्यूचर. और Okay. डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल के अंदर ये हो गया आपका बिजनेस साइड के ऊपर. और दूसरी तरफ जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जॉब वर्सेस बिजनेस का भी एक नया मॉड्यूल निकल रहा है जिसको हम लोग इंट्राप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं. क्या आप एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर आवर व्यूअर्स के व्हाट इज इंट्राप्रेन्योरशिप? इंट्राप्रेन्योरशिप को बहुत आसानी से हम लोग समझे. एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप या अपने बिजनेस आइडियाज़ पे Correct. काम करते हैं. इंट्राप्रेन्योरशिप वो होती है जिसके अंदर लोग किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से जुड़ते हैं, वहाँ पे किसी एक चीज़ को पिक करते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं. Okay. तो दे आर ट्रीटेड एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस, एंटरप्रेन्योर्स इन हाउस, Okay. बट दे आर ऑल्सो हैविंग द ओनरशिप एंड स्टेक इन दैट आइडिया. सुपर. तो इसी चीज़ को लेके हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम बनाया जिसको मैंने आपको बताया कि वी For विल the लॉन्चिंग. youngsters. Yes. It's not just about youngster. Primarily it's for youngsters, but it is also about the people who are already in a stage. तो उसका एक एडवांस प्रोग्राम भी हम लोग लॉन्च करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो ऑलरेडी एक सेट ऑफ बिजनेस में है लेकिन उसको वो 10x ग्रो करने के लिए काम करना चाहते करना हैं, चाहिए. तो वहाँ पे वी बिकम देयर ग्रोथ पार्टनर्स. वंडरफुल. तो इंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप और maybe we will coin a new word about it. It can be indiepreneur, right? Entrepreneur. Wonderful. Indiepreneur can be the people who are committed to the vision which we have created. For India and for the untapped potential of India and tier 2, tier 3 cities. देखिए इंडिया 2047 के अंदर 100 years of independence पे Correct. होगा. हम लोग अभी 2024-25 में बैठे हैं. We have almost 23 years of time. Correct. आज उस पे काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हम लोग जब वो जिस साल हम पहुंचेंगे तो वो साल तो रिजल्ट वाला साल है. रिजल्ट वाला साल है. अगर उस साल के अगर अंदर काम हम करना शुरू किया तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा. अगर हम ये सोचते हैं कि आने वाले 20 सालों में इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एज लाइक 50 to 60 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. हम लोग तो अभी 3 पे पहुंचे हैं. करेक्ट. इफ वी रियली नीड टू ग्रो दिस कंट्री बाय 10x और 15x, हमें 15x आज वो माइंडसेट लाना पड़ेगा. करेक्ट. सो ये तो आपने कह दिया कि हमें ये माइंडसेट लाना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ेगा नेक्स्ट 23-24 साल जो भी हैं हमारे बिफोर वी रीच 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. राइट. सो ये तो एक मैसेज है फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स. जैसे आपने बिगनिंग में भी कहा था कि इफ एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर नॉट क्रिएटिंग अदर एंटरप्रेन्योर्स राइट. देन यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. Right. तो ये तो एक हो गई एंटरप्रेन्योर्स की बात. अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, राइट. तो अकॉर्डिंग टू यू गवर्नमेंट को भी क्या स्टेप्स लेने चाहिए इफ दे वांट टू रीच दैट 50-60 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2047? आई थिंक मुझे मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव दैट द इको सिस्टम कैन नॉट बी डन बाय जस्ट गवर्नमेंट. मतलब देर आर 4 स्टेक होल्डर्स प्राइमरीली: गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, मेकर्स एंड सेलर्स. तो
इन चारों लोगों को साथ में लाना पड़ेगा आपको. Correct. जब तक ये चारों लोग सिनर्जाइज नहीं करेंगे एफिशिएंट इकोसिस्टम नहीं बन नहीं सकता बनेगी. है. क्या सरकार योजनाएं नहीं बनाती हैं? बनाती है. क्या इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो उन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठाते हैं? क्या कस्टमर्स और अवेयर नहीं हुआ है? हुआ है. क्या बिजनेसेस और इनोवेट नहीं कर रहे हैं? कर तो सभी लोग रहे हैं, सब रहे. बट वो एक पेस को फॉलो करना, एक विज़न को फॉलो करना, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना और फिर एक अकम्युलेटिव रिजल्ट के ऊपर बात करना. अभी मान लीजिए जैसे यूनाइटेड नेशंस ने एक फ्रेमवर्क बना के दिया था SDGs का, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल का, और 10 साल का फ्रेमवर्क था बेसिकली 2020 से 2030 तक का. करेक्ट. उन्होंने 17 अपने गोल्स बनाए, उनके फ्रेमवर्क्स बना के दिए. तो जब हम 2030 पे पहुंचेंगे, चाहे इन्वायरमेंट के अराउंड हो, इकोनॉमी के अराउंड हो, गरीबी को कम करने के अराउंड हो, कॉन्शियस कंजम्पशन के अराउंड हो, विमेंस के अराउंड हो, हमारे पास में कुछ मैट्रिक्स तो है ना जिससे हम एक्चुअली बता सकते हैं कि हमने 10 साल में ये डेवलपमेंट किया है. तो इसीलिए हम लोगों ने एक काम किया है. वी क्रिएटेड और मतलब इट्स ऑलमोस्ट देयर, वी विल बी शेयरिंग इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वी क्रिएटेड दिस मिशन ग्लोकल इंडिया. ग्लोकल इज बेसिकली local for global. Local for global. Okay. So, like our prime minister also talk about local for vocal. He's talking about Viksit Bharat. तो जब the first person or the leader of this whole country is giving a vision to the country, it's up to us how we perceive that vision. We come from the art craft background. We are also elevating ourselves as a gift tech company. I'll talk about that as well. It's very interesting area, right? तो उन सब चीज़ों को समझते हुए हमने कहा कि आज, अब मैं एविएशन बैकग्राउंड से तो नहीं आता हूँ कि मैं एलॉन मस्क की तरह रॉकेटरीज के ऊपर काम करूँगा. उसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. करेक्ट. मैं आता हूँ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, मैं आता हूँ इमोशन इंडस्ट्री से, मैं आता हूँ कल्चर से. तो उस चीज़ के लिए ही हम लोगों ने एक ग्लोकल इंडिया विज़न चुना है. और ग्लोकल इंडिया विज़न के अंदर हम लोगों ने अपनी पूरे बिजनेस को इस तरीके से बनाया. आवर बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अ कॉर्पोरेशन, इट्स अ फाउंडेशन एज वेल. जैसे एक पेड़ होता है ना, जो ज़मीन के जितना ऊपर है वो ज़मीन के उतना अंदर है. अंदर भी तो वी हैव क्रिएटेड आवर एंटायर विजन इनटू 2 पार्ट. वन इज़ आवर कॉर्पोरेशन विच इज़ टू बिल्ड बिजनेस, एंड वन इज़ फाउंडेशन विच इज़ टू बिल्ड इम्पैक्ट. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव क्रिएटेड अ 12 पॉइंट ऑफ फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग ग्लोकल इंडिया गोल्स बोलते हैं, गिग. तो gig is also like a very creative word. We are talking about gig economy. We are talking about a lot of things which are around gig. So we created a new version of gig, that's a Global India Goals. तो हमने 12 एरियाज निकाले हैं जिसमें इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, मेकर्स, सेलर्स, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पार्टनर्स, उन सब के साथ में इस इंडिया को बिकमिंग लाइक द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड इन नेक्स्ट 20-30 years. For that we have created a framework, and that framework is not just for us, it's for anybody and everybody who believe into that. Okay. एंड उसके बेसिस पे हम अलग अलग इनिशिएटिव ले रहे हैं. रनिंग इंडी गिफ्ट्स एज अ ब्रांड इज जस्ट वन पीस ऑफ इट. देर आर एटलीस्ट 10 more things where we are working upon, which over the period are in the process of development, and Super. a lot of things will be available. Even running this fellowship or what I told you कि जो हम entrepreneurs के लिए करना चाहते हैं, that is part of it. Creating a policy or a framework of gig, that is part of it. Correct. Creating a product or merchandising brand, that is part of it. Correct. Creating that omni-channel business where not just indie gifts, but also we can enable other brands and businesses to become part of that umbrella, and then supporting these people who are sellers who are not able to upgrade themselves. And creating a framework where other brands also come and be part of that umbrella, and then we have the distribution sorted for them. Super. So ये जो फ्रेमवर्क आपने बनाई है, so if someone wants to follow this, right? So ये कहाँ पे अवेलेबल है? Can someone download it and for them to follow or for them to at least learn about this framework, gig framework जो आपने बनाई है? तो देखिए, गिग फ्रेमवर्क का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव था कि ये ऑपरेशनल बॉडी नहीं है. तो हम लोगों ने अपनी फाउंडेशन को भी अभी इसीलिए बनाया है बिकॉज फाउंडेशन का काम है फ्रेमवर्क बनाना, और उसको डिप्लॉय करने के लिए इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट कर सकती है, राइट? तो हमने अभी जुलाई के अंदर ही क्रिएटेड इंडिबनी फाउंडेशन. तो इंडिबनी फाउंडेशन के जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फ्रेमवर्क बनाना है. राइट. तो देर आर 2 different entities. वन इज इंडिबनी कॉर्पोरेशन जिसमें इंडी गिफ्ट्स आता है, और देन इंडिबनी फाउंडेशन जिसमें पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, आइडियाज आते हैं, इवन स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है. वो इंडिबनी ऑर्ग के ऊपर है. तो देर आर 2 different पोर्टल्स विद अस. वन इज इंडिबनी कॉर्पोरेशन, दैट्स indibni.com,
and then indemni.org. So every single thing which is about knowledge, skill, training and development, we will be putting it at Indemni Foundation, and the website will be indemni.org, INDIBNI.org. And how soon can people look at this framework on the... January. By January it will be launched. January 2025, everything will be in the air. Super. Wonderful. So looking forward to this so that at least we can also contribute kahin na kahin towards this framework, learn from it and try and see how we can adapt in our businesses because... देखिए अंकित है ना, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी. What's there for me, इस अप्रोच से आप करेंगे तो इट्स अ वेरी नैरो अप्रोच. Correct. What's there for the world, then you become one of the person of that vision. आपका strength ही 100 times हो जाता है. Correct. So ये जो आपका mindset है कि what's there for me नहीं है but what's there for the world and how can I contribute, ये mindset कहाँ से आता है? कोई डेफिनेटिव आंसर तो नहीं है. मुझे लगता है कि आई कैन नॉट से आई एम बॉर्न आई नो कि हाँ ऐसा नहीं है कि किसी से एक ये बात जानी और वहाँ से हमने ये शुरू कर दी, बट ये ऑब्वियसली इट इज़ अ रिपल इफेक्ट ऑफ टू मेनी थिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जब तक कुछ बड़े झटके नहीं लगते हैं तब तक माइंडसेट इवॉल्व नहीं होता है. और आई थिंक दोज हु हैव फेस्ड दैट नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसको हम NDE बोलते हैं, तो द पीपल हु हैव फेस्ड सम नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो जिंदगी के वो चक्षु खुल जाते हैं, आपको रियलिटी चेक हो जाता है. तो आई थिंक आई मेट विद एन एक्सीडेंट दैट वाज ईयर 2015. तो मैं ज़िंदगी के जो मेरे अलग अलग घुमाव रहे हैं, अलग अलग पिवट्स रहे हैं, अलग अलग माइलस्टोन्स रहे हैं, उनमें से ये भी एक है. तो मैं ट्रक के नीचे आ गया था. तो बाय गॉड ग्रेस मैं बच गए. ओके. तो मैं 6 महीने बिस्तर पे रहा. फिर 6 months आई वॉज ऑन बेड. आप सोचिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन अडल्ट ऑफ 26 years ऑफ एज ग्रुप जिसकी मॉम को उसका सुसु पॉटी साफ करना पड़ता था. तो हम कितना भी अपनी ज़िंदगी में ऊपर कहीं पहुंच जाएं, जब नीचे देखेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी फैमिली नज़र आएगी, जो नो मैटर व्हाट दे आर देयर फॉर यू. तो मेरी मॉम मेरी लाइफ के अंदर आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा द पर्सन whom I look up is my mother. Not saying because like she's my mom, but I think she's one of a personality, one of a kind. मतलब in my entire life I have not seen a single person like that. तो she was diagnosed with cancer in 2000. तो 2000 साल में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था. शी रिकवर्ड. उन्होंने अपना पूरा लाइफ ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल पे डाल दिया. तो योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों में वो एंगेज हो गई. शी हील्ड हरसेल्फ. शी मेड इट हर लाइफ मिशन कि मेरी ज़िंदगी जो मुझे मिली अब मेरी है ही नहीं. तो मेरे हिसाब से पिछले 25 सालों से इज कम्प्लीटली कमिटेड फॉर द वेलनेस स्पेस. और नो कमर्शियल, मतलब कुछ पैसा नहीं चाहिए उसमें. तो जयपुर में भी शी इज़ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज, सोसाइटीज़, एंड मतलब आप मान लीजिए उनका शेड्यूल वैसे ही रहता है कि वो कम से कम भी 10 घंटे डेली काम करती हैं आज भी. स्टिल एट दिस एज. हाँ, मतलब आप उनको देख के समझेंगे ही नहीं कि शी इज़ अ लेडी हु बिन थ्रू अ लॉट. उसके बाद में उनको 2000 she was alone since 2008. A lot of things she faced alone. उनको फिर 2018 में वापस कैंसर हुआ. This time the cancer detected at stage 4. That was bone cancer. तो डॉक्टर ने तो हमें लिटरली डॉक्टर ने हमें कहा था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months. और शी इज़ फिट एंड फाइन टिल डेट. तो मुझे लगता है कि जब ज़िंदगी आपको एक तोहफे के रूप में मिल जाती है, लाइक द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ इज़ द लाइफ इटसेल्फ, राइट? यस. When you get the life from death, then all you have to give is giving that life for others. Absolutely. और सबके पास में अपने तरीके हैं. मतलब एक जना अपनी सिंपल ज़िंदगी भी जी सकता है, उसमें भी वो he can just do the things which he is supposed to do, taking care of his family. That is also an act, right? Correct. But अपनी ज़िंदगी को अपने लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को किसी और को, एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को, एक कंट्री को एलिवेट करने के लिए यूज़ करना, वो माइंडसेट लाने के लिए कुछ तो शुक होता है आपको, तभी वो निकल के आता है. तो आई थिंक आई लर्नड इट फ्रॉम माई मदर दैट ज़िंदगी अगर एक ही मिली और अगर गलती से आपको वो वापस एज अ गिफ्ट मिल गई है वापस, तो फिर वो आपकी तो नहीं है. एंड आई थिंक सेम प्रिंसिपल्स में आवर लेट रतन टाटा जी भी बिलीव करते थे, दूसरों के लिए जीने में, एंड दूसरों के लिए कमिटेड थे इतने. मतलब ये तो इतने बड़े लोग हैं अंकित कि हम अगर अपने आप को उनके सामने रखने की कोशिश करें तो हम तो मतलब वो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है. बट लुक अप कर सकते हैं हम लोग. मतलब इफ़ वी रियली वांट टू लुक अप, आई थिंक वी हैव सो मेनी थिंग्स एंड पीपल एंड इनिशिएटिव्स अराउंड अस टुवर्ड्स वी कैन लुक अप. लुक डाउन करेंगे तो जो नीचे वही नज़र आएगा, लुक अप करेंगे तो आगे बढ़ने की राह दिखेगी.
और सबसे ज़्यादा हिम्मत पता है किसी इस चीज़ में नहीं चाहिए कि भैया मुझे कोई डेली का मोटिवेशन चाहिए. मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल रैबिट, आई एम अ कंसिस्टेंट टॉर्टोइस. मेरे लिए मेरा लाइफ का मिशन ये है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना है. मुझे 10वां स्टेप नहीं नज़र आ रहा, इट्स ओके. करेक्ट. ऑल आई नीड टू डू इज़ जस्ट टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप. एब्सोल्युटली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और आप देखिए मैजिक भी ऐसे ही होता है. हाँ, सुबह सबसे पहले उठ के अगर आपने एक चीज़ करी, वो चेकलिस्ट में आपकी आ गई. करेक्ट. It can be a morning 10-minute meditation, it can be walking, it can be anything which is a ritual, which enables your routine. करेक्ट. आप देखिए अपने आप पूरा दिन कैसे अलाइन हो जाता है. अलाइन हो जाता है. वो हैबिट फॉर्म करना जरूरी है. और उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं नहीं चाहिए. चाहिए. उसके लिए केवल I know. कंसिस्टेंसी चाहिए Consistency आपको. चाहिए. सो अब थोड़ा सा इसको रोमांचक बनाते हैं. Because कहानियाँ चलती हैं. कहानियाँ तो डेफिनेटली चलती रहेंगी एंड रोमांच में भी कहानियाँ और अच्छे आएंगी ही. टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक, राइट? सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू एंटर इनटू शार्क टैंक के भाई शार्क टैंक में जाके मुझे पिच करना है? बिकॉज हमने शार्क टैंक के पिच में सुना कि यू आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन. एंड आई थिंक जब आपने आपका शो एयर हुआ था तब यू सेड दैट यू हैव डन 45 crores ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू एंड अभी तो आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा है. सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू गो टू शार्क टैंक और गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दीज शार्क्स? ऑनेस्ट आंसर तो ये कि अगर हम लोग चाहते तो मे बी वी कुड हैव गॉन देयर इन द सीजन 1 इटसेल्फ. ओके. क्योंकि उतनी तो समझ थी हमारे को. मैं तो बोल रहा हूँ कि जब हमने अमेजोन यूएसए से इंस्पायर होने के बाद में इंडिया की ई कॉमर्स वेव को रन किया, तो शार्क टैंक यूएस को तो मतलब कब से देख रहे हैं. करेक्ट. आई थिंक वी हैव सीन मोर देन 10-11 सीजंस. Yes. तो शार्क टैंक एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जेन्युइनली आइडियाज़ को नर्चर करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है. इंडिया में इसका फॉर्मेट काफ़ी अलग है, बट स्टिल व्हाट इट इज़. शार्क टैंक में हम लोग क्यों गए? देखिए, मैं बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, वो तो इनएविटेबल है, कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर. और मैं ऐसे लोगों में नहीं हूँ जिसको बहुत ज़्यादा नेम फेम पब्लिसिटी चाहिए. मतलब ऑनेस्टली अगर मैं खुद से भी पूछूँ, नॉट जस्ट बिकॉज सीइंग फॉर व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि मैं कंटेंट हूँ ऑलरेडी. मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पसंद है, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ. तो मैं किसी और के लिए तो वैसे ही नहीं कर रहा. करूँगा. जब मैं ऑलरेडी कंटेंट हूँ तो मुझे किसी और से वैलिडेशन तो चाहिए ही नहीं उस चीज़ के लिए. और आई थिंक ये जो एक एटीट्यूड मैं कैरी करता हूँ, ये एटीट्यूड नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है. बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं हूँ मेरे साथ में, तो मुझे किसी और के साथ मतलब किसी और की वो ज़रूरत नहीं है. मतलब मुझे मेरे को ज़िंदगी में कभी मोटिवेशन नहीं चाहिए. आई डोंट वांट मोटिवेशन एट ऑल इन माय लाइफ. मोटिवेशन तो वो टेम्पररी होता है ना, कि मतलब वो आज है कल शायद नहीं होगा. बट वो किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सर आप. करेक्ट. मतलब जब मैं सांस ले रहा हूँ और अपने आप को अलाइन कर पा रहा हूँ, तो मुझे ही तो नेक्स्ट कदम लेना है. तो मुझे वो बहुत क्लियर है अपनी लाइफ के अंदर कि आई डू नॉट सीक समबडी एल्स टू टेक मी एनीवेयर. बट डोंट यू थिंक कि लोग इसको एरोगेंस की तरह भी देखेंगे शायद? ये एरोगेंस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस. हाँ, मतलब नहीं, लोग देखते हैं शायद बहुत लोग के, तो मुझे लगता है कि वो देख भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं है. करेक्ट. मतलब जो आपके पास में नहीं है वही आपको सामने वाले में नज़र आता है. जो आपके पास में ऑलरेडी है, इफ़ यू आर फुलफिल्ड, आपका अपना सॉर्टेड है, भरा हुआ है, तो फिर किसी और से क्या सीख करेंगे आप. तो मैं एक तो स्टार्टअप्स की भी हम बात करें या फिर इसकी बात करें, तो मैं तो हूँ ही गिफ्टिंग इंडस्ट्री में. तो मैं तो सीख ही नहीं करता कि मुझे कोई कुछ दे. करेक्ट. मैं तो, मेरा माइंडसेट ये है कि मैं तो देने के लिए बनाऊँ. गिवर्स गेन भी नहीं चाहिए. इट्स जस्ट सेल्फलेस गिविंग. हाँ, इट्स सेल्फलेस गिविंग. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू कम बैक टू मी, बिकॉज फिर वो तो अपने आप है, वो तो लाइक इट्स कर्मा. करेक्ट. वो मुझे एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं. वो तो लॉ ऑफ नेचर है कि जो मैं करूँगा वो घूम के वापस मेरे पास आ जाएगा. बट मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो वो मेरे लिए वापस इन रिटर्न मेरे लिए भी कुछ करे. तो ये मेरा हमेशा से एक थॉट प्रोसेस रहा है. शार्क टैंक कैटेगरिकली हमारे लिए एक माइलस्टोन इसलिए भी है बिकॉज पहली बात है कि हम वहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन से गए ही नहीं थे. ओके. आपने अगर वहाँ पे देखा तो बाकी सब में आपको बड़ा मिर्च मसाला और पम्प एंड शो एंड कुछ मिलेगा. तो हमारा बहुत ही नेचुरल था. करेक्ट. और आपको गजब बात बताऊँ, और ये अंदर की बात ही समझ लीजिए, लिटरली मतलब द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग, ऐसे कि घर में बैठ के बातें करते हैं. मैं सच बता रहा हूँ आपको, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि वी वर ट्रीटेड बैडली और वी बिकम एरोगेंट एंड वी डिड नॉट ट्रीटेड द पीपल हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस इन राइट वे. इट वॉज वेरी जोवियल काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. बिकॉज हम मज़ा कर रहे थे कि मतलब जो हम कर रहे हैं, हमारी कहानी को हम लोग उन लोगों से, उन 5 लोगों से हम नहीं शेयर कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी जना उसको देख सकता है उसके साथ हम शेयर कर रहे हैं. द ओनली रीज़न टू बी देयर बिकॉज सम ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी दैट what you believe, you need to take it to the more people and just treat that platform where you are talking not just with one person, you are talking with like millions of people.
That's the only reason we So went Shark there. Tank was that platform to reach to that millions of people and tell your story. Funding मिले नहीं मिले was secondary. फंडिंग आज भी उतना ज़रूरी नहीं है. Correct. देखिए मेरा बिजनेस तो चल ही रहा है. Correct. अब कोई जना इसका एक बिजनेस माइंडसेट देखता है कि यार ये बिजनेस को एक्चुअली बिजनेस के तरीके से 100 टाइम्स बढ़ाया जा सकता है. Correct. देन इट बिकम्स अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज फॉर बोथ ऑफ अस. आपके लिए भी अपसाइड है, मेरे लिए भी अपसाइड है. True. इट्स प्योरली फॉर दैट पर्पज ओनली. और बाकी मेरे कस्टमर्स हैं जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, उनसे तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ. और आई थिंक वहाँ पे शार्क टैंक के अंदर काफ़ी चीज़ें एयर नहीं हुई थी. वहाँ पे 1.5 घंटे का एपिसोड शूट हुआ था और 20 मिनट का लाया हुआ था. तो वहाँ पे जो मैंने किया था वो ये था कि मैं 5 लोग जो वहाँ पे एज अ शार्क बैठे हुए थे, 5 लोगों के लिए मेरे 5 स्ट्रैटेजिक प्रपोजल्स थे. Okay. और मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हूँ. अगर any of you is agreeing on what is the key expectation of me from you, then I'll be happy to go ahead about it. Super. तो 5 लोगों को मैंने 5 प्रपोजल्स पिच किए थे और 5 आस्क थी. Okay. और उसके बाद ही मैंने हाँ किया था कि आई एम ओके टू गो हेड विद दैट बिकॉज दे कमिटेड मी विद दैट. Super. Super. And I think जब लास्ट हमारी बात हुई थी आपने बोला कि yes they are very much in alignment even after Shark Tank. आप विनीता से मिले थे आई हाँ, थिंक. मैं विनीता से मिला, मैं रितेश से भी मिला. रितेश से अभी हम लास्ट मंथ जब मिले थे तो वी हैड अ वेरी क्लियर प्रोपोजिशन फॉर हिम. देखिए इन्वेस्टर को पैसा अगर बनाना है तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा ना पैसा बनेगा कैसे. कैसे? तो वी शेयर्ड सम की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऑफ व्हाट दे हैव एंड व्हाट वी हैव Correct. and how we can actually grow from India to the world. OYO is one of the company which is growing rapidly internationally. Absolutely. We believe into that. And we really want to be part of that growth journey which is there for each other, not just for one. Investors cannot be just the investors who are just investing and getting no return as such. They are also investing their network and time, which is helping them to multiply their worth, their wealth. Absolutely. So अगर investors की अगर मैं बात करूँ, so now that I don't know if you have spoken to any other investors post Shark Tank या before Shark Tank आपने बात की है नहीं की So है? before Shark Tank, we were not even in that mindset to raise investment. Second, after the Shark Tank, organically we received a lot of support, a lot of queries. और मैं बहुत ही क्लियर था कि at this stage of my business, I'm not really looking forward for just investment. At least 5 to 7 people I'm looking forward to have as strategic investors. Okay. Because मैंने clear road map बनाया है. और उस road map के लिए मेरे को 10 अलग अलग एक्सपर्टीज की जरूरत है. आप उनको कोच वर्ड की तरह काम में ले सकते हैं. ले सकते हो. So you wanted someone who is in between coach and an investor. Yes. Somebody who has been there, done that and having that person, because हम वैल्यूएशन पे कम क्यों अग्री कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उसके टाइम को वैल्यू कर रहा हूँ. बिजनेस के अंदर अगर मुझे केवल पैसा ही लेके आना है तो जो मैं वैल्यूएशन पे मैंने शार्क टैंक में हाँ करी उसे एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग रेडी हैं. रेडी है. करेक्ट. बट ये केवल गेम है, बातें हैं, कुछ मतलब नहीं है इसके अंदर. इट इज़ लाइक कि मुझे इसको 100 से 1000 टाइम्स बनाना, उसमें मुझे कौन हेल्प कर सकता है. So आप खुद से 0 to 1 आ गए हो. अब 1 to 10 या 10 हम to 10 100 तक आ कैसे गए लेके हैं. जाए? अब 10 से 100 तक हमें जाना है. तो 10 से 100 के लिए जो मुझे जिस तरीके से हेल्प कर सकता है, वैल्यू उस 100 की है, वैल्यू 10 की नहीं है. 10 की नहीं है अभी. तो जो भी जना यहाँ पे बैठ के गेम प्ले करते हैं कि मेरी वैल्यूएशन ये है, मेरी वैल्यूएशन वो है, वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं देख पा रहे हैं. जब मुझे 1000 करोड़ का रेवेन्यू वाला एक बिजनेस बनाना है तो उसके लिए मेरे लिए सबसे राइट लोग कौन हो सकते हैं, वो वैल्यू है ना. बट कुछ इन्वेस्टर्स तो आज वो देखते ही हैं कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, बिकॉज दे वांट एन एग्जिट फ्रॉम योर बिजनेस. उनके लिए इनके लिए शायद एंड पर्पस वो है कि दे वांट एन ठीक एग्जिट. बात है. उस तरीके के लोगों को आप लेवल 2 पे केटर करिए क्योंकि पैसा बहुत सारा चाहिए ना. जब हमारे को इतना बड़ा बिजनेस बनाना है तो 50 लाख रुपए से होगा 10 क्या. to 100 नहीं, मे बी 100 to 1000 लेके जाना, तब क्या चाहिए? हाँ, और उसके लिए भी फिर पैसे से पैसा बनने वाली चीज़ है. वहाँ पे तो फिर पैसा लेना ही इसलिए क्योंकि सामने वाले को आप एटलीस्ट 3 to 5x रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे पाओगे. अगर वो नहीं दे पाओगे और उसका आपका पाथ क्लियर नहीं है, आपको भी कोचिंग चाहिए उस माइलस्टोन को बनाने के लिए, देन इट डजंट मेक सेंस टू फूल पीपल. करेक्ट. सो इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली आपने अगर बात की होगी तो कि वो बहुत बार पर्पस शायद अगर ना समझ पाए एक फाउंडर का, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर पर्पस ड्रिवन आप नहीं काम कर, पहली बात है आपको पर्पस ड्रिवन होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डेविएट तो आपको करेगा ही करेगा. हर दूसरे दिन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा. आपको अगर उस पर्पस को लेके क्लैरिटी नहीं है, और हो सकता है आपको भी पर्पस नहीं समझ में आता हो, तो टेक गाइडेंस फॉर दैट. बट वंस यू राइट योर पर्पस देन एवरीथिंग गेट्स अलाइंड.
एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, और ये एग्जाम्पल अगेन जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ना, मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं डिज़ाइन थिंकिंग पे काम करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर्स पे काम करता हूँ, और क्रिएटिविटी भी मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में निकालता हूँ क्योंकि आउटकम की गारंटी है वहाँ पे। करेक्ट। तो डिज़ाइनर और आर्टिस्टिक माइंडसेट का डिफरेंस यही है कि डिज़ाइनर एक आउटकम के लिए काम करता है, आर्टिस्ट अपने लिए काम करता है। वेरी ट्रू। तो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको मैं 5P फ्रेमवर्क बोलता हूँ। ये कोविड की उपज है। कोविड के अंदर जब हम बैठे थे तो कोविड के अंदर ये समझ में आया कि ज़िंदगी के अंदर पर्पस को कैसे निकालें और पर्पस का क्या इंपॉर्टेंस है, या लाइफ के अंदर ओवरऑल लेवल के ऊपर पर्पस आता कहाँ पे है। करेक्ट। तो ज़िंदगी को आप है ना एक मूविंग गाड़ी की तरह देखिए। एक कार है, एक कार चल रही है, तो कार के अंदर 4 व्हील होते हैं, हमने देखे ही हैं। जो 4 व्हील है वो 4 एरियाज़ को सिम्बलाइज करते हैं। जो सबसे पहला व्हील है जिसको मैं पर्सनल व्हील बोलता हूँ, तो पर्सनल व्हील इज़ ऑल अबाउट योर माइंड बॉडी सोल, राइट। आपका व्हील है पूरा का पूरा, व्यक्तिगत भाग जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा व्हील है जिसको मैं प्रोफेशनल व्हील बोलता हूँ, आपका व्यावसायिक व्हील हो गया, योर ब्रेड एंड बटर, द थिंग्स विच यू आर गेटिंग, योर वोकेशन थिंग, राइट। जो तीसरा व्हील है जिसको मैं बोलता हूँ पीपल व्हील, सोशल व्हील, जिसके अंदर आपका परिवार, रिश्तेदार, समाज सब कुछ आ जाता है, जो आपको एक सामाजिक प्राणी बनाता है, राइट। और जो आपका चौथा व्हील है जिसको मैं पैशन बोलता हूँ। पैशन इज समथिंग विच ड्राइव्स यू इन सम वे दैट यू आर कमिटेड टू क्रॉस योर लाइन्स। एक प्रोफेशन पैशन तब बन पाएगा जब आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे। करेक्ट। अगर आप केवल ब्रेड एंड बटर के लिए काम करें तो प्रोफेशन है, लेकिन एक वो लाइन क्रॉस होती है जिसके अंदर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, देन इट बिकम पैशन। आई थिंक लिमिट्स को पुश करना इज द राइट वर्ड। मैं उसको एक कैटलिस्ट की तरह मानता हूँ, और उसको मैंने एक कैटेगरी के लिए मैंने एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ माना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में 100% कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती होगी जो आपको ड्राइव करने में हेल्प करती होगी। Absolutely. आपके लिए क्रिकेट हो सकता है, आपके लिए वो रीडिंग हो सकती है, आपके लिए ट्रैकिंग हो सकती है, आपके लिए म्यूजिक हो सकता है। देयर कैन बी 100 थिंग्स एंड इट कैन इवॉल्व एज वेल। ज़रूरी नहीं कि वो सेम रहे। तो इस हॉबी और पैशन वाली कैटेगरी को हम लोग मानते हैं। इसका बेनिफिशियरी आप भी हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी भी हो सकती है, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, बट इट इज समथिंग विच ड्राइव्स यू। तो ये 4 व्हील अगर आपकी गाड़ी के अंदर है तो आपकी गाड़ी आगे जा सकती है, आपकी गाड़ी पीछे जा सकती है, लेकिन एक 5वां व्हील होता है गाड़ी के अंदर। वो 5वां व्हील क्या है, गेस करेंगे आप? आई थिंक तो दैट 5th व्हील इज स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील, ओके। अगर आपकी गाड़ी को आपको एक डायरेक्शन में लेके जाना है तो डायरेक्शन। और ये जो 5th व्हील है जिसको मैं पर्पस बोलता हूँ, ओके। पर्सनल, प्रोफेशनल, पीपल, पैशन एंड देन पर्पस। जब ये 5 व्हील अलाइन होते हैं तब जाके ही आपकी गाड़ी को एक डायरेक्शन मिलती है। और आप जो ये बोलते कि मेरे प्रोफेशनल गोल्स हैं, जो ये बोलते मेरे पर्सनल गोल्स हैं, या मेरे को हॉबी कुछ ऐसी है मेरी, या मेरा सोशल कुछ गेन्स हैं, जब तक वो पर्पस के साथ में नहीं अलाइंड है ना, तो ये बाकी 4 व्हील भी आपको आगे पीछे ले जाएंगे, डायरेक्शन नहीं मिलेगी आपको। आप उसी रास्ते पे सिर्फ आगे पीछे जा रहे हो, उसको आपको कहीं डायरेक्शन गजब बात है कि जैसे हम लोग देखते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको माइलस्टोन्स नजर आते हैं। तो माइलस्टोन में जब लिखा होता है ना कि लाइक दिल्ली इतने किलोमीटर आगे है, आपको डायरेक्शन मिल रही है। तो मुझे लगता है कि पर्पस आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ के बाकी 4 व्हील्स को भी अलाइन करने के लिए। जो आज सब कह रहे हैं कि यू शुड वर्क ऑन योर वाई, तो ये पर्पस कहीं ना कहीं वो वाई है। पर्पस वाई है, बिल्कुल, पर्पस इज वाई। पर्पस के बाद में आपका मतलब वाई के बाद हाउ आता है, जो आपका मिशन है। मिशन मेजरेबल होता है, पर्पस मे नॉट बी मेजरेबल बट पर्पस इज विजन। बट जो मिशन है, जो आपका हाउ है, वो हमेशा मेजरेबल होता है। इट कम विद अ टाइमलाइन, इट कम विद अ नंबर, एंड देन व्हाट इज बेसिकली योर एक्शन क्या करने तो वाई हाउ व्हाट इज बेसिकली विजन, मिशन एंड एक्शन। जब ये तीनों चीजें आपकी अलाइन होती हैं, तब मुझे लगता है कि इट बिकम मच ईजियर टू ड्राइव। तो मतलब हमने इंडिबनी के अंदर अगर आप जाके देखेंगे भी ना, तो इंडिबनी में हमने प्रॉपर अपना वाई हाउ और व्हाट लिखा हुआ है। राइटली इंस्पायर्ड बाय वो साइमन सिनेक का जो स्टार्ट विद वाई। यस, आई रेड साइमन सिनेक, आई रेड अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक डेल कार्नेगी से लेके शिव खेड़ा से लेके देयर अ लॉट ऑफ पीपल हु रियली हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट कोचिंग। कहीं से भी मिल सकती, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए एक पर्सन हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट योर सेल्फ कोच। ट्रू। सो अभी अगर आपके इंडस्ट्री की बात करें, गिफ्टिंग इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव है ऑलमोस्ट। आई थिंक आपके एपिसोड में किसी ने मेंशन किया था दैट एवरीवन इज इनटू गिफ्टिंग। यस, आई थिंक इट वाज अनुपम ने कहा था कि एवरीवन इज इनटू गिफ्टिंग,
कि आज वो शादी.com चला रहे हैं, वो भी गिफ्टिंग में है, लेंसकार्ट भी गिफ्टिंग में है, बोट भी गिफ्टिंग में है, राइट? सो एवरीवन इज इनटू गिफ्टिंग. तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो आपके तो प्रोडक्ट्स हम लोग को? गिफ्टिंग कंपनी है ही नहीं. ओके. सो आर यू अ गिफ्ट टेक कंपनी, जो आप कह रहे थे कुछ समय पहले? Yes, मतलब maybe we will coin some new word. I don't know. We are basically a company which translate emotion into something which is experiential. It can be definitely physical, tangible products are there, but there is much more to that emotion quotient. तो हमारा काम है कि हम इमोशन को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. Right. और गिफ्टिंग बिकम वन ऑफ द थिंग फॉर दैट. सेकेंड, अगर आप बोल रहे हैं कि हर कोई जना अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट के साथ में टैग करता है तो गलत नहीं है. लेकिन किस जने के लिए, किस ओकेज़न पे, किस रिलेशन पे भी आप, एक कंपनी है जो अगरबत्ती बनाती है, अब वो अगरबत्ती आप हर चीज़ पे तो नहीं दे सकते ना यार. ओके. इट नीड टू बी बंडल्ड विद द राइट पीपल. Right, तो yeah. इंडी गिफ्ट्स को आपको एक बॉक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसका काम ही यही है कि वो राइट ओकेज़न, राइट इमोशन, राइट पर्सन, राइट बजट, इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके लेके आती है. करेक्ट. और फॉर दैट वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस. बट देन अगर अभी का हम बात करें, राइट, सो करंटली वी आर जस्ट नियरिंग दिवाली, एंड दिवाली में तो एवरीवन इज लाइक एवरीथिंग इज गिफ्टिंग. बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है, बहुत ही मैं कॉम्पिटिटिव आपको हो जाता गजब है. चीज़ बताता हूँ. राखी और दिवाली के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो सीड राखी एज अ ब्रांड वी क्रिएटेड, अ प्रोडक्ट वी हैव क्रिएटेड. तो दिस ईयर ऑलमोस्ट 100+ D2C brands brought seed rakhi from us and added in their hampers. ओके. Same we can also do. We can also create a rakhi hamper, and then a lot of brands are there जिनके products को हम consolidate करके अपने box में डाल सकते हैं. तो it's a two-way approach right Okay. now. Okay. Same goes with Diwali. तो दिवाली के ऊपर we created some unique bandarwals and some a rangoli which is a reusable rangoli which you can, मतलब 99 टाइप से आप उसकी डिज़ाइंस बना Wow. सकते हैं. तो दैट्स अ सिंपल बेसिक प्रोडक्ट. देखिए, इंडी गिफ्ट्स के ब्रांड लेबल से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट इट नीड टू बी इनोवेटिव, राइट. इट नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट नीड टू बी बजट, मतलब वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए. वैल्यू फॉर मनी होना और चाहिए. ये मास मार्केट के लिए होना चाहिए. ओके. तो हम वो प्रोडक्ट अपने लेबल के अंदर बना रहे हैं जो एन नंबर ऑफ लोग यूज़ कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं. और जब हम गिफ्टिंग एज अ सर्विस की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिस ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट और कस्टमर्स और कॉर्पोरेट वी आर क्यूरेटिंग एंड कंसोलिडेटिंग, देन इट बिकम अ डिफरेंट लेवल. ये दूसरा लेवल बन जाता बट जब है. आप बोलते हो कि मास मार्केट के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना है, देन यू आर कम्पीटिंग विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ सेलर्स और प्रोडक्ट्स. तो आपको उसमें पैसा कैसे बनेगा, प्रॉफिट कैसे बनेगा? बिकॉज मास मार्केट्स में ऑलवेज इट इज लो मार्जिन्स. मास मार्केट हमेशा लो Generally. मार्जिन के ऊपर होता है, लेकिन मास मार्केट बिकॉज हम का कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, बट कौन सा कस्टमर कितना वैल्यू निकालेगा दैट वी डोंट नो. सो इट इज ऑलवेज द एंड वॉर इज बिट फॉर प्राइजेस. in the end it is all about how you are making people feel about that. ओके. Price, product, price, position, promotion with purpose. Again यहाँ पे भी fifth P आता है. आता है. ओके. राखी तो बना ही रहे थे ना. Correct. राखी का मार्केट ही इंडिया के अंदर कम से कम भी 6,000 करोड़ का राखी का मार्केट है इंडिया के अंदर. तो फिर व्हाट्स देयर फॉर अ न्यू ब्रांड? करेक्ट. सेम गोज विथ बांदरवाल. आप देखिए 90% अभी जो बांदरवाल आती है वो चाइना से आती है, और मेड फ्रॉम अगेन सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक से, मेटल से Correct. बनी हुई है. आपको कन्वेंशनली मिलेगी भी, हैंडक्राफ्टेड भी मिलेगी, लेकिन वो बहुत मेन स्ट्रीम limited में नहीं है नहीं क्योंकि है. उसका बल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो कस्टमर एक्सेस नहीं है उसकी. अभी हमने एक सिंपल सी बांदरवाल बनाई है विच इज़ कम्प्लीटली हैंडक्राफ्टेड फ्रॉम सस्टेनेबल ऑर्गेनिक मटेरियल, हैंडमेड मटेरियल्स के साथ में. दैट सिंपल बांदरवाल बिकम वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल. देखिए, कमोडिटी इन द एंड सब कुछ कमोडिटी है. आप Correct. कोई भी चीज़ Correct. उठा के देख लीजिए. करेक्ट. बिकॉज मास मार्केट कमोडिटी ही कर देता है. मास मार्केट कमोडिटी ही है, और देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बिकॉज देर इज अ डिमांड. करेक्ट. बट उस डिमांड में आप इनोवेटिव तरीके के साथ में क्या नई अप्रोच के साथ में एलिवेट कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि एज इनोवेटर्स और द मेकर्स ऑफ न्यू थिंग्स हमारा काम है कि हमें ऑल्टरनेटिव देना है. करेक्ट. आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ. राखी के ऊपर बिफोर लॉन्चिंग सीड राखी वी वर ऑलरेडी अ टॉप सेलर एट अमेजॉन. ओके. We were among top 2 sellers at Amazon And this across is not Rakhi. seed Rakhi. This This was is any not seed Rakhi. normal Rakhi जो This is आप the खुद normal handcraft Rakhis. कर रहे थे. हाँ. नहीं, इवन वी वर हैविंग द राखीज विच वर हैविंग रुद्राक्ष एंड वो सब Okay, कुछ हम कर रहे okay. थे उस टाइम पे. बट हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम इस चीज़ में लीडर हैं और हम ही ऑल्टरनेटिव नहीं लेके आएंगे. देखिए, जो जनता फॉलोअर है या जो जनता कॉपियर है या जो ब्रांड्स इनका काम ही कॉपी पेस्ट Copy करना, paste तो वो करना उसमें है. अच्छे हैं. करेक्ट. दे आर गुड ट्रेडर्स एज वेल. हमारे केस के अंदर ये है कि इफ़ यू आर द इनोवेटर्स,
we need to set the industry in the right pace. We need to set standards for the industry. हम इंडिया से भारत से दुनिया में जाने की बात कर रहे हैं और हम Correct. कोई एथिक्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ स्टैंडर्डाइजेशन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम इनोवेशन पे ही नहीं काम कर रहे हैं, हम अपने ब्लू कॉलर स्टाफ को राइटफुल वेजेस ही नहीं दे रहे हैं. हमें कुछ तो स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे ना. सो ये 10 साल में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? एवरी सिंगल डे देयर इज अ चैलेंज. आई नो एवरी सिंगल डे मतलब ये तो एक काउंटलेस ऐसी बात चैलेंजेस है, होती आप हैं. किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछ लेंगे तो वो तो ऐसे दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने, ऐसी फीलिंग आ जाएगी. बट ऐसी कोई प्रोमिनेंट चैलेंज दैट यू ओवरकम? I think despite I talk a lot about emotions, I talk a lot about behaviors and the psyche of the people. एक तो आई थिंक आपने बोला कि यू हैड व्हाट 25,000 प्लस SKUs. आई थिंक दैट इज अ ह्यूज चैलेंज टू हैव. उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका पूरा हाँ मतलब logistics we set and our पूरा- processes right. हाँ. मतलब we set our processes right. सो उसके अलावा क्या चैलेंजेस और आई हैं? या मुझे अंकित जेन्युइनली लगता है कि बिजनेस के जो चैलेंज है ना, अब हम बिजनेस में चैलेंज को समझते हैं लेकिन इन द एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस जब भी आप उनको पीछे जाके देखेंगे तो इट समवेयर गोज टू द पर्सनल साइड. ऐसा मेरा Somewhere मानना goes to है, the पर्सनल साइड. ओके. क्योंकि इन द एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड ही मैटर करता है. बट व्हाट इफ समटाइम्स देयर आर एक्सटर्नल चैलेंजेस जो आपके हाथ में ही नहीं है? कोविड आया, एक्सटर्नल चैलेंज था, मैं बोल रहा हूँ. बट आई हैड द राइट पीपल हु हेल्प मी टू नेविगेट इट थ्रू. मान लीजिए कोविड के अंदर ही अगर ऐसी चीज़ें हो जाती कि आपका माइंड सेट ही नहीं हो पाता तो वैसे भी सब खत्म होता ही ना. देखिए बिजनेस तो बना ही इसलिए बिकॉज इट्स लाइक एन उतार चढ़ाव का काम. करेक्ट. और इसमें एपेटाइट ऑफ रिस्क भी ज़्यादा है. ज़्यादा है. तो वो तो होना ही है क्योंकि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं इसीलिए तो रिस्क ले रहे हैं. कुछ अनफोर्सिन टेरिटरीज होती हैं, कुछ आपकी सीन टेरिटरीज होती हैं, लेकिन दोनों गारंटीड नहीं है. सीन चीज़ भी उसी तरीके से काम करेगी उसकी भी गारंटी नहीं है, और अनफोर्सिन चीज़ हमेशा चैलेंजिंग होगी उसकी भी गारंटी नहीं है. तो चलना तो आगे पड़ेगा ही. बट कुछ चीज़ें जो मेरे साथ में हुई मतलब और मैं कोट इसलिए करना चाहता हूँ कि ये पर्पस क्वेश्चंट होने के बाद में मेरे मान लीजिए मेरी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. ओके. और एक चीज़ जो मैं और बोलना भी चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट. तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में लाइक आई हैड लाइक जो भी मेरे लाइफ के हाई एंड लोज रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या कि ब्लॉकेजेस इकट्ठे होते रहते हैं. वो ऐसे डोर्स हैं जिन पे आपने लॉक लगा दिया जिनको आप एड्रेस नहीं करना चाहते. सबकी ज़िंदगी में होता है, कभी कोई ब्रेकअप हुआ होगा, कुछ बिजनेस का लॉस हुआ होगा, किसी ने इंसल्ट कर दिया होगा, आई डोंट नो, मल्टीपल थिंग्स आर देयर विच आपके इनर कॉन्शियस तक वो चीज़ें चली जाती है और वापस जाना नहीं चाहते हो वो रास्ते. जाना नहीं चाहते क्योंकि उसको एड्रेस करने से फिर वो आप वल्नरेबल स्टेज पे चले जाओगे. करेक्ट. तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में क्या करते हो कि आप वो अलग अलग जो चीज़ें हैं ना उनको लॉक कर करके रखने लग जाते हो. और सबकी अपनी लिमिट है, कोई कितना उठा पाएगा, राइट. तो मेरे साथ में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही है जिसकी वजह से मेरे ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं रह गए थे और उनको मैंने कभी एड्रेस नहीं किया था. तो मुझे somebody told me about विपश्यना और 2018 में तो मेरे को एक विज़न था कि जब when I will be turning 30 तो I wanted to be in mountains doing meditation और doing something. वो विज़न मुझे बहुत सालों से था. Fortunately विपश्यना के अंदर जो लेह वाला पर्टिकुलर सेंटर है वो छोटा सेंटर है और कम से कम भी 3-3 महीने पहले ही वो बुकिंग्स उनकी वैसे चलती रहती क्योंकि 20 से 25 लोग लेते हैं वो कुल मिला के. तो फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ पे हो गया उस टाइम के अंदर. तो आप मान लीजिए विपश्यना वर्ड तो मुझे 10 साल पहले से ही पता था है. लेकिन जब तक वो कॉलिंग नहीं आती तब तक वो होता नहीं है. ये रियलिटी है बिल्कुल. मैंने सुना है कितने लोग जाके 2 दिन में वापस आ जाते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. जा ही नहीं पाते. जाके वापस आना तो फिर आपका कम परसेंटेज है. 100 में से मतलब मान लीजिए 10 लोग ही जा पाते हैं और 10 लोगों में से मान लीजिए 8 लोग पूरा कर पाते हैं एटलीस्ट. तो विपश्यना ने मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग समझाया. मतलब आर्ट ऑफ लिविंग नॉट एज अ बिजनेस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग बट एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग. तो ये जो मैं बार बार पर्पस के बारे में बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि दैट पर्पस क्लिक्ड आफ्टर आई डिड विपश्यना. तो विपश्यना आपका एक स्टेट ऑफ माइंड जो है ना उसको बुनियादी लेवल पे बदलने पे बात करता है, काम करता है. और वंस दैट चेंजेस इट चेंजेस एवरी सिंगल थिंग अराउंड यू. मैंने तो ज़िंदगी में बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपए लॉस भी किया है. लॉस सही वर्ड नहीं है मे बी, मतलब एपेटाइट ऑफ रिस्क भी मैंने लिया है और मैंने करोड़ों रुपए को कमाया भी है. ओके. तो मेरे को वो रुपए तो उतना फैसिनेट करता ही नहीं कि कोई मुझे बोले कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बिजनेस के सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन ये था कि भाई मैंने पैसा लगा दिया या पैसा कमा लिया. करेक्ट. वो मेरे लिए हाई एंड लो नहीं है.
किस स्टेट ऑफ माइंड से मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरा बिजनेस रिलेवेंट बना रहे. जब मैं आपको बोल रहा था कि मैं गिफ्ट टेक के ऊपर बात कर रहा हूँ, वाई नॉट अ I क्राफ्ट, was about to come to वाई that. नॉट gift फ्रॉम tech अ क्या है? क्राफ्ट हाँ. कंपनी टू अ गिफ्ट टेक कंपनी. And I think ये आपने शार्क टैंक पे भी मेंशन किया था that you want to make a gift tech company ओमनी out चैनल of एंड it. गिफ्ट टेक, टू थिंग्स आई क्लियरली मेंशनड इन माय And I think पिच. आपने specifically बोला था कि personalization is going to be the key in gifting industry or differentiator in the gifting industry. And I think वहाँ पे tech introduction होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही बात है. मैनुअल वहाँ से कुछ नहीं हो सकेगा. आप अभी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं. Yeah. आपने फर्स्ट चैट जीपीटी कब यूज़ किया था? I think 2-3 years बैक, 1 year बैक? 1.5 years. ठीक है. ई कॉमर्स वर्ड आपने कब सुना था सबसे पहले? 2015-16 के आसपास. क्विक कॉमर्स? बस जस्ट आई थिंक लास्ट ईयर की बात लग रही है. ऐसे तो मे बी 2 साल हुए होंगे बट मतलब एडेप्टेशन आना इज लाइक लास्ट ईयर. आप मुझे ऐसे पेस लग देख रहा रहे हैं 10 साल के अंदर द वे वी परसीव कॉमर्स Yeah. हैज चेंज्ड. है. यस. तो जिस दौर में हम लोग हैं, गिफ्टिंग तो केवल एक इंडस्ट्री, मतलब गिफ्टिंग केवल एक सेगमेंट है. इट्स Correct. विथ एवरीथिंग. द वे वी परसीव, द वे वी कम्युनिकेट, करेक्ट. and the way we actually shop, all things are undergoing a phenomenal change. Web 3.0 के अंदर लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? वेरी लेस पीपल आर थिंकिंग एंड वर्किंग अराउंड इट. करेक्ट. एंड जिन्होंने शायद काम किया भी है दे आर नॉट वेरी हाईली सक्सेसफुल इन वेब 3.0. करेक्ट. तो मैं सिंपली आपको एक चीज़ कहता हूँ कि what is the thing where we are working and how we are transforming ourselves from a gift company to a gift tech company. हम लोग को virtual assistants चाहिए करेक्ट. because we want to rely on the wisdom of AI to give us better recommendation and suggestion. For that, there are no right sort of systems in place in the e-commerce system. ओके. तो हम लोगों ने इंडी करके एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बनाया. तो इंडी गिफ्ट्स इज देयर, इंडिबनी इज देयर, बट वो क्रिएटेड अ कैरेक्टर बाय नेम ऑफ इंडी. इनफैक्ट दिस इज द कैरेक्टर विच वी हैव क्रिएटेड. यस. तो हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि हमारा जो इंडी है, हमारा जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है वो जेन ज़ेड है. करेक्ट. तो हमारा ये इंडी 2000 में पैदा हुआ है. अभी 24 साल का हो 24 गया. साल का हो गया. अब इसकी फैमिली है, इसके पापा है, इसकी मम्मी है, इसकी गर्लफ्रेंड है, इसका एक पेट है, इसकी सिस्टर है, इसके गुरुजी भी हैं एक. एंड देन हाउ ही इज़ नेविगेटिंग थिंग्स फर्दर, द वे ही इज़ नेविगेटिंग थिंग्स फर्दर, ही इज़ लर्निंग. राइट. नाउ यू कैन ट्रीट इंडी एज योर बडी. तो you need to have an interface. That's the tech. करेक्ट. You're coming to Indie Gifts. There Indie is there who is greeting you. Maybe Indie Gifts can be Indie's gift shop. ओके. Indie Gifts is Indie's gift idea. That's how he is doing his business, right? राइट. And then you're coming and talking to Indie. Hi Indie. So I'm looking forward to buy a gift for my kid who is 5-year-old, राइट. who is a girl, who likes these and these figures. राइट. I want So it in like this AI के city. लैंग्वेज में यू आर गिविंग अ प्रॉम्प्ट टू द सिस्टम. एग्जैक्टली मैं प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ. मैं कॉन्टेक्चुअल सर्च के ऊपर की बात कर रहा हूँ. कॉन्टेक्चुअल सर्च तो आपको समझ में आता है कि आप 4 फिल्टर लगा देते हैं और सर्च होके रिजल्ट आ जाता है. वो तो जो आजकल रेगुलर ई कॉमर्स में आपको अवेलेबल है. हाँ, contextual search is available. Not up to that level, but yes, contextual search is available. I'm talking about prompt based, not just search. This is maybe way beyond smart search. हाँ, I'm not just talking about search. I'm even talking about creation of the artwork. When you say creation मतलब क्या? The artwork will be generated. अच्छा, so AI आपको एक ऐसा आर्टवर्क जनरेट करके देगा which then Indie Gifts will create into a gift piece for you and deliver it to you. You can also select on which you want that art piece to be done. Okay. All I'm saying, the way this whole industry is evolving, the consumers are also the makers. Right. We are the facilitators. Correct. For that, we really need to develop that sort of tech, which we are working upon already. Right. It's just like the funds are lacking because जो business में से पैसा निकल के आता है, R&D के ऊपर कोई पैसा देता नहीं है. सबको वो even the investors are not evolved the way they should have been evolved Right. by investing in R&D. अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो रिसेंटली मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ ऑन लिंक्डइन एंड आई हैव बीन सीइंग कि आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो. एंड आई थिंक आपने बोला कि आपके डैड ने आपको बताया था कि भ्रमण करते रहो. भ्रमण से भ्रमण से भ्रम मिटेगा. राइट. एंड आप आई थिंक अभी एक ट्रैवल जर्नी पे हो विच इज़ कॉल्ड इंडी यात्रा एंड यू आर गोइंग एंड मीटिंग डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स.
सो ये कब से आपने शुरू की है इंडी यात्रा तो एंड देखिए क्या इंडी journey यात्रा रहा है? एक अगेन आई डोंट नो हाउ बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इंडी फॉर मी एंड आई थिंक उसका रीज़न भी मैंने एक बार बताया था कि नितिन और दिव्या के नाम को भी आप देखेंगे तो नितिन और दिव्या साथ में लिखते हैं तो इंडी बनता है हम लोग Right. का. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिव्या दैट शी enable me to dream high and walk towards those dream. Correct. उसको उतना क्रेडिट दे नहीं पाता हूँ मैं बट आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट आई हैव हर. कमिंग टू दिस इंडी यात्रा देर अ लॉट ऑफ दिस इंडी वर्स वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. देखिए मुझे सिंपली ऐसा लगता है कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग आर बाय ट्रैवलिंग. ये मेरा तरीका है. कुछ लोग रीडिंग करके करते हैं. Correct. कुछ लोग और तरीके से कर सकते हैं. जो आपको मतलब भ्रमण से भ्रम मिटे का मतलब ये है कि व्हेन यू विल बी हैविंग डाउट्स you need to clear those doubts, and how you will clear those doubts, it's by maybe navigating further, taking some walk towards some unforeseen areas, and then let the nature guide you in that area. तो इंडी यात्रा एज अ कॉन्सेप्ट अब लॉन्च किया है. मैं ट्रैवल तो करता ही हूँ, हर साल मैं ट्रैवल करता हूँ. अब तो मैं साल में कम से कम मान लीजिए 2 महीने ट्रैवल कर रहा हूँ मिनिमम. इंडी यात्रा को मैंने एक प्रोग्राम की तरह बनाया. अब इस प्रोग्राम को मैं और स्ट्रक्चर भी करूँगा. और आप देखिए कि हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने जितनी चीज़ें बोली सब आपस में कैसे इंटरलिंक होती है. हाँ. तो इंडी यात्रा जो हम कर रहे हैं वो अभी तक मैं करता था. तो मैंने 21 डेज तक कंटिन्यूस 7 स्टेट्स के अंदर ट्रैवल किया था. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल. IIM के अंदर जाके आया. स्टूडेंट्स के साथ में भी बात किया. कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में भी मिला. इट वॉज पार्ट ऑफ द ट्रैवल. इट वॉज नॉट हैविंग अ डेफिनेटिव एजेंडा. इट वॉज जस्ट नो एजेंडा ट्रैवल. जस्ट लोगों से मिलो, उनके बारे में जानो, उनकी आइडियाज के बारे में जानो. लेट नेचर गाइड यू. अब मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट इंडी यात्रा का वर्जन था वो 21 डेज का कंटिन्यूस था. छोटे छोटे तो मेरी यात्रा चली रहे. बट जो मैंने आपको बोला ना कि हम लोग जो जनवरी के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, दैट प्रोग्राम कैटेगरिकली वेयर वी आर आइडेंटिफाइंग द राइट पोटेंशियल पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. आई विल टेक देम विथ मी इन दैट यात्रा. सुपर. तो नेक्स्ट वाला जो वर्जन होगा इंडी यात्रा का 2025 का, उसके अंदर आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट फेलोशिप to learn from the nature itself, learn from the people. स्टोरी में बोला था कि जो चौथा बेटा था वो हाँ उस दुकान पे जाके बैठा और वहाँ से उसने कुछ सीखा. Exactly. Learn by practical experiences. भ्रमण करोगे, भ्रम भी मिटेंगे, कुछ सीखने को भी मिलेगा. कुछ दे भी पाओगे, कुछ ले भी पाओगे. तो ये इस तरीके से हम लोग करेंगे. और there are few more things which I am very excited to do. So one of the thing, I'm very happy that finally we found foundation. We already had a family trust. हमारी एक family trust हम लोग 2019 से ही रन कर रहे हैं. राइट. बट वो फैमिली ट्रस्ट थी. और उसके ऑब्जेक्टिव अलग थे, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल्स बनवाया या फिर स्कूल्स बनवाए, गौशाला करवाया, तो इट्स प्राइमरली द फैमिली मनी विच वी हैव इन्वेस्टेड. अब हम जो कर रहे हैं इट इज़ मोर अबाउट अ डिफरेंट विजन, बिकॉज वी वांट मोर पीपल टू पार्ट ऑफ द फाउंडेशन एज वेल. तो ये फाउंडेशन में और ज़्यादा लोगों को हम लोग रखना चाहते हैं. तो अब उस फाउंडेशन के वाया कुछ हमने जो अपने गोल्स डिसाइड किए हैं. मैंने ग्लोकल इंडिया आपको ऑलरेडी बताया कि दैट्स द गोल और द मिशन विच वी आर वर्किंग अपॉन. और नए आइडियाज़ को फॉस्टर करना, पार्टनर्स बनाना, और उन पार्टनर्स के साथ में ट्रैवल बिकम ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. बट एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ओमनी चैनल एक्सपीरियंस को डिजिटल फर्स्ट बना के फिजिकली एलिवेट करने के ऊपर काम करना. तो वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 10 years. I've been part of a lot of events as well. I organize like some very good big international level events in last 15 years. These are for entrepreneurs. No, it's not for entrepreneurs. It's a space which we want to treat as a festival. Okay. So it's more like a mela of modern day India. Nice. Where we are talking about tech, where we are talking about experience, we are talking about content, community, commerce. We are talking about how we can remain rooted but grow to the limits of the sky. How can people become part of it? Common citizen can become part of that big India vision. तो एक इवेंट और एक फेस्टिवल जैसी चीज़ को हम लोगों ने पूरा कंसेप्शलाइज किया. वी गॉट द IP रजिस्टर्ड एज वेल. Wonderful. And what are we calling this? Indie Mela? It's Indie Festival. Indie Festival. Indie Mela sounds more catchy, but I wanted to make it more international. International flavor थोड़ा लाना था. Indie Festival Because we created. making in India for the world. Yes. So वो making in concept India से. for the world. That's the concept. Correct. So इंडी यात्रा की अगर मैं बात करूँ अगर कि ये जो लास्ट आपने कही 21 डेज की जो जर्नी थी, एंड वेर यू मेट स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सो ये 21 डेज में व्हाट वाज द बिगेस्ट लर्निंग दैट यू हैड?
लर्निंग या कोई एक स्पेसिफिक स्टोरी जो आपको याद रह गई हो एंड प्रॉब्ली विच विल रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम किसी एक So I ऐसे have एंटरप्रेन्योर को two-level मिले? answer for that, and I really want to quote this. One of the biggest learning from this whole journey is to unlearn very fast. Because आप already भरे हुए हैं, तो कुछ नया आएगा ही नहीं. तो भूलो अगर कुछ नया सीखना चाहते हो. That was my learning. भूल जाओ. मतलब ये लोग कहते हैं कि learn, unlearn, relearn. That's the sequence. बट जो आपने क्वेश्चन किया स्पेसिफिकली विच आई रियली वांटेड टू हाईलाइट, तो देयर इज़ अ कपल कॉल्ड श्वेता एंड तन्मय. आई नो देम फ्रॉम सम टाइम नाउ. बोथ आर एजुकेटेड. Okay. They are running their businesses or तो दे हैव अ वेरी डिफरेंट आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ. तो दे आर वेरी मच इनटू सस्टेनेबिलिटी एंड नॉट फ्रॉम टुडे, लाइक फ्रॉम लास्ट 20 years. okay. तो दे डिसाइडेड टू लीव. नागपुर के पास में एक पारासिंगला करके विलेज है, वहाँ पे रहते हैं ये लोग. Okay. तो दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू गिव द लाइफ. उनका जब बच्चा हुआ तो दे वांटेड टू गिव हिम अ लाइफ विच इज़ प्योरेस्ट. और उसकी वजह से बच्चा होने के बाद में, हम यहाँ पे बच्चा होता है सोचते हैं हमें उसको हायर एजुकेशन देना है, हम अर्बन सिटीज़ में जाना चाहते हैं, वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं, अमेरिका भेजना चाहते हैं. उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे को गाँव में लेके जाएंगे. Okay. Both of them compromised, or like they made a conscious call to go and live in the same village where their forefathers used to live. Now that become the purpose of their life. Life. Correct. They want to elevate not just that one life. They want to elevate the life of all the next generation of that entire village. Wow. आपको बहुत गजब बात बताता हूँ. वो जो गांव में स्कूल है ना, उसमें अगर 20 बच्चों से कम हो जाएंगे तो वो स्कूल बंद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होते हैं. Right. और वो मानी कि उनका जो बच्चा है वो 20वां बच्चा है. Oh. तो दे आर नॉट So जस्ट just to keep that school running, उन्होंने बच्चे को भी उसी स्कूल में डाल दिया. वन ऑफ द थिंग was विच दे that. डिड कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को उन्होंने डाला, ताकि केवल उनका बच्चा नहीं, वो जो बाकी सारे बच्चे हैं ना, वो भी एलिवेट हो पाए. Nice. दे पर्सनली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम in terms of elevating that entire ecosystem, not just in terms of education, sanitization, sustainability, growing organic food. जो ये पूरे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हैं उसको हटा के उन्होंने अपनी पूरी सीड लाइब्रेरी बनाई है, Wow. जिसके अंदर वो ऑर्गेनिक सीड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं और फार्मर्स को दे रहे हैं कि इससे आप खेती करिए. वो वहाँ पे विमेंस को एम्पावर कर रहे हैं. दे आर डूइंग सो मेनी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव्स जस्ट टू मेक श्योर दैट द इकोसिस्टम Stays alive. stays alive. तो दैट्स वन ऑफ द लर्निंग फ्रॉम माई साइड, कि अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब हम यहाँ पे 1 लाइफ 2 लाइफ की बात करते हैं, मतलब अगर मैं एक विलेज या एक अंडर प्रिविलेज स्पेस को पकड़ के एलिवेट कर पाऊँ, Wow. तो आई थिंक आई फील माई लाइफ इज़ फुलफिल्ड. Wonderful. इनफैक्ट जैसे राजस्थान में भी एक ऐसी कहानी है. तिलोनिया करके एक विलेज है राजस्थान के अंदर, जयपुर से कुछ आई थिंक 40-50 किलोमीटर दूर. तो बुनकर रॉय करके एक पर्सन थे. तो बुनकर रॉय उस विलेज में आए और उस पूरे विलेज को एलिवेट करने के लिए उन्होंने काम किया. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी. Correct. आप देखें, इट बिकम अ यूनेस्को की स्टडी. Wow. तो हम अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं मेरे लिए से ऊपर उठ के एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए हम काम कर पाएं. बनाने के लिए मतलब see, आज probably everyone might have those kind of goals और at least thought process शायद होता होगा, but then हम कहते हैं ना कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले हम धंस जाते हैं कहीं ना कहीं, एंड देन फिर वो सपना वैसे ही रह जाता है. मतलब मैं तो क्या कहूँ यार आपको, मैं बस ये बोल सकता हूँ कि मे बी आई एम ब्लेस्ड दैट डिस्पाइट, अब जैसे अब मैं, मेरे पास में कोई सॉब स्टोरी नहीं है बताने के लिए, क्योंकि आई डोंट वांट एनीबडीज पिटी और एनीबडीज, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए. हाउ डू यू देन टेक आउट टाइम, बिकॉज इसमें सिर्फ टाइम नहीं लगेगा, इसमें पैसे भी लगेंगे, इसमें आपकी एफर्ट भी लगेगी. आपको जो आप कर रहे हो एग्जिस्टिंग, वो छोड़ के शायद वहाँ पे जाना होगा. जैसे आपने बोला वो कपल वहाँ पे सेटल हो गए हैं, सो वो माइंडसेट भी नहीं आता ना बहुत लोगों को. अंकित, मैं यहाँ पे बस इतना ही कह सकता हूँ कि मतलब हमने ये चीज़ पढ़ी है मल्टीपल फॉर्म्स में, मल्टीपल स्टोरीज़ के अंदर हमने देखी है, सुनी है, समझी है कि अगर आप पर्पस ड्रिवन है, आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो थॉट है, अगर वो इतना स्ट्रांग है, तो वो फिर कहते हैं ना पूरी कायनात उसमें उसको सच करने में जुट जाती है. सो देन अगर कोई कहता है कि नहीं यार मुझे इसके लिए टाइम नहीं है, या ये मैं करना चाहता हूँ बट कर नहीं पाता हूँ, या पैसे नहीं है, तो देन मतलब कहीं ना कहीं जो आपका आप जो ही पूरे ये नहीं कर पा रहा हूँ, purpose, उस एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं. आप ही खुद ऐड कर रहे हैं. देखिए अंकित, जिंदगी में एक ही चीज है,
नहीं करने के 100 बहाने, करने का ना कोई एक। करने का एक भी बहाना नहीं है, करना है। करेक्ट। नहीं करने के 100 बहाने। ट्रू। और आप देखिए, या तो आप शिकायत कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। Correct, जिसको काम करना है वो काम करेगा। लोग बोलते हैं सर झुका के काम करो, नहीं, सर उठा के काम करो। काम करो, अपने तरीके से काम करो। एक ज़िंदगी लग के भी अगर एक चीज़ बदल गई तो वैसी अरबों जिंदगियां इस धरती के ऊपर जो कीड़े मकोड़ों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। इन दैन फ्रॉम लाइफ टू दैट, जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें डिसाइड करना है कि हमें उसमें क्या करना है। द पर्पस ऑफ लाइफ पता है क्या है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ इज हाउ यू वांट टू डाई। द मोमेंट जब मैं मरना चाहता हूँ, मैं कैसे मरना चाहता हूँ, मैं बस ये सोचता हूँ। और जब मुझे लगता है कि जब मैं मरना चाहता हूँ तो मैं ऐसे मरना चाहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। वाह, सुपर। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन टुडे ब्रांड, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप तो डेफिनेटली रहा है, बट दिस विल गिव लॉट ऑफ लेसन्स जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं इसको, कि लॉट ऑफ लेसन्स इवन फॉर लाइफ, कि पर्पस डिफाइंड नहीं है ना। जैसे हर क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ कि आपने पर्पस के साथ जोड़ा है, हर चैलेंज को, हर प्रॉब्लम को और उसको कैसे सॉल्व करना है आपने पर्पस के साथ ही जोड़ा है। तो आई थिंक पर्पस जब तक क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इट विल बी जस्ट सॉब स्टोरी, इट विल बी जस्ट रीजंस। देखिए, जब तक पर्पस डिफाइंड है, लाइफ का एक जो सेंटर पॉइंट है ना आपका, जब आप उसकी तरफ देखोगे तो आप कितना भी इधर उधर कहीं पे भी घूम लो, आपको सेंटर पॉइंट नजर आएगा और वापस आप अलाइन हो जाओगे। मतलब आपके दिमाग में एक सेकंड में मैं आपको बोलूं कि आप ना 2 मिनट बस आंखें बंद करिए। विपश्यना में तो ये चीज़ हमने सीखी है कि भैया विपश्यना कुछ भी नहीं, इट इज़ जस्ट लाइक फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। कोई मंत्रा नहीं है, कोई चैंटिंग नहीं है, कोई डीटी नहीं है जिसको वर्शिप कर रहे हैं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे, कोई पैसा नहीं बट रहा, कोई बोलियाँ नहीं लग रही। तो आप सोचिए कि वो सांस लेने की भी अगर हम एक बेसिक सी प्रैक्टिस करें कि 2 मिनट आप बिना कुछ सोचे केवल सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये देखिए, ये भी नहीं कर पाते हम। आई नो कितने फंसे पड़े हम लोग फिर लाइफ के अंदर, कितने फंसे पड़े। आई नो। सो यस नितिन, मतलब मैं जनरली ट्राई करता हूँ इन दी एंड, राइट, कि वी ऐड सम वैल्यू टू आवर लिसनर्स इन टर्म्स ऑफ समराइजिंग द एंटायर एपिसोड। बट आई थिंक आपका ये जो एंटायर एपिसोड है, आई थिंक हम एक ही शब्द में समराइज कर सकते हैं, विच इज़ पर्पस। पर्पस डिफाइन कीजिए, जैसे आपने बोला हुआ है, आपके लाइफ का पर्पस अगर आपको मिल गया तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। और आप ही की गाड़ी है, आप ही की गाड़ी का अपना ही स्टीयरिंग है, चलाने वाले भी आप ही हैं, कोई और थोड़ी ना चला रहा है आपकी गाड़ी को। मेरा पर्पस आपका पर्पस सेम हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। और जब भी आपको पर्पस क्या नहीं समझ में आ रहा, तो ये सोच लो मरना कैसे चाहते हो, अपने आप पर्पस याद आएगा, याद आ जाएगा। आई नो। ग्रेट। सो आई थिंक with this we can conclude our discussion, and I would like to thank you so much for once again for coming for this episode and sharing so many wonderful insights. आपने जो पर्पस के बारे में बात की, आपने जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, mind blowing. I think entrepreneurs, even for individuals who are not entrepreneurs, are gonna get lot of learnings from this. यार अंकित, मैं बस आपको भी इसीलिए एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, मेरे अंदर से ये सब कुछ निकल इसीलिए पे आया क्योंकि आप उतने प्योर थे। मतलब कोई यहाँ पे अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक कमर्शियल माइंडसेट के साथ बुलाता तो शायद मेरे अंदर से वो निकल ही नहीं पाता। और मंदिर में जाके आपके विचार अलग प्योर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर इन दिस स्टूडियो, दैट दे इनेबल्ड मी टू एक्चुअली एक्सप्रेस व्हाट आई फील, एंड आई एम ग्लैड, एंड आई थिंक आई स्पोक फ्रॉम वॉट एवर आई स्पोक फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई एम श्योर लाइक जो भी मैंने बोला, अगर इस पूरे 1 घंटे के अंदर से 1 सेकेंड या 5 सेकेंड का भी कोई एक वर्ड, कुछ एक थॉट, एक इमोशन किसी के पास जाता है तो इट्स अ सक्सेस। एब्सोल्युटली। तो हमारा जो पर्पस है वो, जैसे मैंने कहा ना, कि वो अचीव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, इस पॉडकास्ट का पर्पस सब हो जाएगा। थैंक यू नितिन once again. Thank you to all our viewers and listeners for watching this entire episode. आई एम श्योर आपको डेफिनेटली बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी फ्रॉम दिस एपिसोड, एंड प्लीज़ डू शेयर योर values and learnings from this episode in the comments below. We are looking forward to it. Thank you so much.